আমার জন্ম বাংলাদেশে, আমি একটা মুক্তিযুদ্ধের মেয়ে ছিলাম। বাবাকে আমি এটাই বলছিলাম যে আপনি মিথ্যা বলতেন, কিন্তু সত্যটা কেন বললেন যে আমি আপনার মেয়ে? আমার কখনো বিশ্বাস হয় না। आना है क्योंकि मेरी बाबा माँ मेरा पेरेंट्स जो भी है वो मुझे मिलना है, और मैं हेलो इतना तुम्हें एक बार आना है, और मुझे जैसा भी हो मुझे आप मुझे वो कर दो। এখানে আছেন আপনি, আপনার নামটা একটু বলবেন প্রথমে? আমার নাম কিরণ হাজারি। কিরণ হাজারি, আপনি হ্যালো 8920 শোনেন? হ্যাঁ, আমি হ্যালো 8920 যখন পাকিস্তানে ছিলাম তখন কাজ করতে আমার একটা ছোট ভাই আমাকে শোনাইতো যে আপু এটা আমাদের বাংলাদেশের, আপনি শুনেন। তখন আমি বুঝতাম না, কিন্তু কাহিনীটা সামথিंग थोड़ा थोड़ा समझ में आता था। बट जब मैं बांग्लादेश में आया हूँ तो मैंने रेगुलर कंटिन्यूज सुना है इसको। আপনি বলছিলেন যে আপনি পাকিস্তানে এটা শুনতেন, মাঝে মাঝে শুনতেন, আপনাকে কেউ একজন সাহায্য করতো। আমরা সেই জায়গাটায় আসবো, তবে তার আগে আমার বেসিক কিছু জিনিস জানা দরকার। লাইক আপনার বয়স এখন কত? 40 চলছে বা 40-এর কিছু বেশি, তাই তো? আচ্ছা, কত সালে জন্ম হয়েছিল সেটা কি মনে আছে? জন্ম হয়েছিল সেটা ভাইয়া বলতে পারি না, ইনফ্যাক্ট এর জন্য বলতে পারি না কেন, আমি এখানে তো ছিলাম না, বাবা মা তো ছিল না, আমাকে কে বলবে? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আসছি সিরিয়ালি আপনার কাছে। বেশ কিছু কোশ্চেনের মুখোমুখি হয়ে গিয়েছি আমরা, প্রিয় শ্রোতা, আমরা এগুলো উদ্ধার করব। তবে তার আগে একটু জানি যে আপনার এখন থাকা হচ্ছে কোথায়? এখন বর্তমানে আমি যাত্রাবাড়ি। যাত্রাবাড়িতে আছেন? কতদিন যাবত আছেন? 1 বছর উপরে হয়ে গেছে। 1 বছরের উপরে হয়ে গেছে যাত্রাবাড়িতে। ওকে, শুরু করুন। আপনি কোথা থেকে শুরু করতে চান আপনার জীবনের গল্প? হ্যাঁ, আমি শুরু করতে চাই ভাইয়া ছোটবেলা থেকে। জি প্লিজ। যখন আমার বয়স 11 বছর, আমি ক্লাস 6 পড়ি, তখন আমি বুঝতে পারি, ইনফ্যাক্ট আমাকে বলে যে আমি একটা বাঙালি মেয়ে, তখন আমি জানতে পারি। बट ऐसा होता है যে जिसके पास मुझे भेज देता है वो बाबा, मैं उनके साथ स्मगलर की काम करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम। ওকে, আপনি বলছেন যে আমি যতটুকু বুঝেছি যে আপনি 11 বছর বয়সে এসে আপনি জানলেন, মানে আপনি যে পরিবারে বড় হয়েছেন সেই পরিবার আপনাকে জানালো যে আপনি বাঙালি একটা মেয়ে। আচ্ছা, আমি একটু প্রথম থেকে আসতে চাই আপনার জীবনের গল্পে। একদম যখন থেকে আপনার মনে আছে, আপনি বাঙালি তো অনেক পরে জেনেছেন, তার আগে তো আপনার শৈশব আছে, সেখান থেকে শুরু করুন তো, আমি শুনি একটু। ছোটবেলা থেকে অনেকেই আমার এরকম ছিল যে আমি মেয়েদের কাপড় পরতাম না, আমি ছেলেদের কাপড় বেশি পরতাম, প্যান্ট শার্ট এগুলো আমার অনেক ভালো লাগতো। আমার পাকিস্তানের কোন প্রদেশে আপনি বড় হয়েছেন ওই সময়টাতে? কোহাট। কোহাটে? ওকে। তো কোহাটে ওখানে মনে করেন আমি ক্লাস 5 পড়ি, 5 থেকে আমি বৃত্তি নেই আলামা স্কুল, ওখানে থেকে বৃত্তি নেওয়ার পরে আমি খুবই আনন্দের ভিতরে থাকি। আমার বাবা আমাকে অনেকেই লাইক করে, আর আমার বাবার 4টা ছেলে থাকে। শুরু থেকে আমি যাওয়ার পর থেকে ওদেরকে শুনি যে আমার 4টা ভাই, কিন্তু শুধু দেখি আমি একটা ছেলেই। হ্যাঁ, জিশান ভাইকে আমি দেখতে পাই, আর বাকি 3টা ভাই আমার বাইরে থাকে, লন্ডনে থাকে। আমার বাবা কখনো ওদেরকে ওর জন্মই ওইখানে, ওদেরকে পাকিস্তানে কখনো আনে নাই। আমার বাবার অনেক বড় বাড়ি, আমাদের বাগান, আপেল अमरूद बागान, सब बहुत बड़ा एक बागान है। उस बागान में मैं खेला धूला करता था, ये तोड़ता था वो तोड़ता था, लोगों को सताता था। फिर हमारी जो है 250 भैंस था जो दूध देता था, तो शरारती में बहुत करता था। ये मेरी माँ पसंद नहीं करता था, और मेरा भाई जो है उसको मेरे साथ नहीं देता था, बोलता था उसको जब भी मेरे साथ चलता था वो मुझे बहुत लाइक करता था, तो मुझे ये बोलता था जे उसके साथ तुम नहीं चलना, खराब हो जाओगे ये वो। तो मैं बोलती थी अबू को जे बाबा ये मेरी माँ क्या बोल रही है, मेरी माँ भैया को लाइक करते, मुझे क्यों नहीं करते, मुझे उस तरह की प्यार क्यों नहीं देते। तो बाबा बोलते तेरे को तो मैं प्यार करता हूँ ना, वो बीमार है ना इसलिए, और वो बेटी पसंद नहीं करती है। এগুলো বলতো আপনার বাবা আপনাকে? ওকে। तो मार्च को मेरी स्कूल में खेल था, वहाँ पर मेरे बाबा एक पैकेट मुझे देता है, जे पैकेट तुम छोटा से जब क्लास 1 থেকে আমাকে দিয়ে এগুলো করাইতো, তখন আমি জানতাম না, প্যাকেট দিতাম নিতাম। আপনার বাবা আপনাকে কিছু একটা প্যাকেট দিত, সেটা আপনি কোথাও দিতেন এবং সেটা নিতেন, তাই তো বলছেন? হ্যাঁ। ওকে। मेरे को एक पैकेट मेरा बस्ता में देता था, उनको मेरे को वो पहचान लेता था, मैं उनको नहीं पहचानता था। कोई भी आके मुझे बोलता था तुम्हारा फादर है कि तुम्हारा अब्बू जो पैकेट दिया है ना बेटा वो पैकेट दे दो। ओके। तो मैं उनको पैकेट देता था, वो मुझे एक पैकेट देती थी। ओके। तो वो पैकेट लेके मैं जब स्कूल खत्म हो जाता तो मैं घर आ जाता था। तो जब क्लास 6 में तो मेरे बाबा मेरे को पैकेट देता है, पैकेट देने के बाद बोलते खेलने की वहाँ पर तुम्हारे 2 लोग आएगा तुम उसे दे देना। ओके। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ पर जाता, मेरा छोटा भाई जीशान वो भी मेरा साथ जाता है खेल देखने के लिए। আচ্ছা, আপনার ওই যে ভাইগুলো ছিল তাদের কি কখনো প্যাকেট দিত?
ना हमारे भाईटा ऐसा था जे वो नॉर्मल थी, नॉर्मल की, बट उसकी जो हृदय थी उसमें छेद था, वो ये काम नहीं करता था। নো নো, আমি যেটা বোঝাচ্ছি যে আপনাকে তো একটা প্যাকেট দিত আপনার বাবা, আমরা কিছুটা হলেও গেস করতে পারছি যে প্যাকেটের মধ্যে ভালো কিছু ছিল না, কিন্তু আপনার যে অন্যান্য ভাইগুলো ছিল তাদেরকে কি কখনো এই ধরনের প্যাকেট ট্যাকেট দিয়ে বলতো? ना 3 भाई तो मेरे बाहर है, तो तुमने कभी भी नहीं देखा। কবি ভি নেই দেখা। আচ্ছা नहीं। ওকে, আর ছোট যেটা ছিল ওকে কোনো সময় কোনো কাজ দিত না? नहीं, वो कर नहीं सकता था, वो पढ़ने में भी भीग था क्योंकि उसके हृदय में छेद था। ওকে, প্রিয় শ্রোতা, উনি আসলে উর্দুতে বলছেন, আপনারা বুঝতে পেরেছেন, কারণ ওনার বড় হওয়া পাকিস্তানে এবং উনি 1 বছর যাবৎ বাংলাদেশে, তার মানে পুরোটা সময় উনি পাকিস্তানে। উনি বাংলা ভাষা তেমন একটা ভালো করে বলতে পারেন না, এবং আরেকটা হিস্ট্রি আছে, এই যতটুকু বাংলা উনি বলছেন সেটার পেছনে হ্যালো 8920 অনেকখানি আমরা যতটুকু শুনেছি যখন ওনার ইন্টারভিউ নিচ্ছিলাম। আমি শুনেছি এরকম যে আপনি হ্যালো 8920 জন্য বাংলা ভাষা বলা হ্যাঁ শিখেছেন। ভাই, আমি হ্যালো 892 তে আসার জন্য বাংলা শিখেছি। ইনফ্যাক্ট এরকম হচ্ছে যে আমি টাকা দিয়ে বাংলা শিখেছি, যার কাছে আমি শিখছি সে আমাকে বলতো তুমি যদি বাংলা শিখো তাহলে টাকা লাগবে। হ্যাঁ भैया, যত টাকাই লাগে আমি বাংলা सीखबो। इनफैक्ट मुझे आना है लेफ्टिनेंट 2 में, मुझे आना है क्योंकि मेरी बाबा माँ मेरा पेरेंट्स जो भी है वो मुझे मिलना है, और मैं लेफ्टिनेंट 2 में एक बार आना है, और मुझे जैसा भी हो मुझे आप मुझे वो कर दो। उसके लिए मैंने बांग्ला सीखा है, और उसने मुझे सिखाया। उसको मैं अगर वो ये इस वक्त अगर वो सुनता है, अगर कुछ है तो मैं उसको सलाम करती हूँ, जैसा भी है वो भी ওকে रंग है। ওকে, আজকের স্টোরিটা আসলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আমরা কিছুটা হলেও আজ করতে পারছি, বাট হ্যালো 8920 তার যে স্বকীয়তা সেটা বজায় রাখবে। আসলে আপনি আজ করতে পারলেও শেষ পর্যন্ত সে আজটা ঠিক থাকবে না। আপনি শুনতে থাকুন, তারপরে বুঝতে পারবেন যে আসলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। ওকে, তো ক্লাস 6 এ পড়ার ঘটনা বলছিলেন তখন। জি, ওই ক্লাস 6 মার্চ से यानी कि আমাদের খেল হয়। খেল হয় ওখানে আমার বাবা যখন আমাকে ওই पैकेटটা দেয়, तो पैकेटটা অনেক বড় ছিল। प्रथम यानी कि पहली बार मैंने उनसे सवाल किया है जो बाबा इसमें क्या है, आप मुझे इतना चीजें देते हो। कभी मैंने सवाल नहीं किया, बट वो मुझे देता है, मैं से ले जाती हूँ। ये मेरे दिल के अंदर से एक बात आया है पहली बार। तो मेरे बाबा ने ये मुझे कहा जे अच्छा तुम आज लेके जाओ, जब ऑफिस आओगी तो मैं बताऊंगी इसमें क्या है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने खेल में चला गया था, वहाँ पर खेल हो रहा था। मैं हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये मुझे लड़काओं के खेल मुझे ज्यादा पसंद है, खेला है। तो उसके बाद ही मुझे एक लड़का आया, मेरे भाई बैठा हुआ, उसमें सब लोग खेल देख रहा था। ओके, तो उसमें बैठा हुआ मेरा भाई को मैंने बोला जे ये बैग तेरे पास रखना, क्योंकि मैं खेलने के लिए गया, अगर कोई मेरे अलावा किसी को भी मत देना। तो मेरा भाई बोला था अच्छा ठीक है। जब मैंने खेल के आया है तो एक लड़का मुझे आवाज दिया है, किरण आप हो? मैंने कहा जी। पैकेट? मैंने कहा ये। मेरी बैग उसने लिया, उसने मेरे को एक बैग दिया। ओके, अच्छा, वहाँ पर मैंने रखा। जब मैंने 800 मीटर दौड़ देने के लिए गया है, 4 बार मैंने क्रॉस किया। इनफैक्ट 5वां बार जाके मुझे अरेस्ट। वहाँ पर पूरा लड़के का सब लोग आए, क्या हुआ क्या हुआ, किरण के अरेस्ट क्यों? मीडिया वाला भी वहाँ पर थे, फोटो खींच रहा था। मैं उनको ये बोल रहा था, ऑफिसर जो थे, मैंने कहा देखो बच्चा मेरा फोटो मत लीजिएगा क्योंकि मेरी लाइफ खराब हो जाएगी, और मेरी लाइफ को खराब मत कीजिए। क्या तुम्हें मालूम है जब तुमने ये काम किया तब मुझे तुम्हें ये नहीं था तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। मैंने कहा मैंने क्या किया? बोला चलो तुमने क्या किया यहाँ पर नहीं बताना है, वहाँ पर बताना है। घर में जब बैठा है मैंने कहा मुझे छोड़ दो। कह रहा है नहीं तुम्हें लेके जाना है, तुम किसके लिए काम कर रहे हो, तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा क्या है इसमें? कह जानते इसमें टास है। मैंने कहा टास क्या होता है? कह इसमें पाउडर है। मैंने कहा पाउडर तो मुंह में लगा लो, इसमें क्या है, मुंह में लगाओ, बेचो जाके, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तो कह रहा था इसमें वो बेको फोटास नहीं है, इसमें हीरोइन है। हीरोइन जानते हो क्या है? मैंने कहा नहीं। कह रहा चलो तुम्हें पता चलेगा। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। तो उसने मेरे बाप को, तुम्हारे बाप का है? मैंने कहा मेरे बाप को गाली मत देना। लोग की पट्टा, उसको मैंने गाली दिया, लोग की पट्टा पैसा खाते हो तुम और 2 मिनट में छोड़ दोगे मुझे। तो बोला 2 मिनट में छोड़ने वाला मैं वो ऑफिसर हूँ जो मार पड़ता है जब सब कुछ बता देता है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे यहाँ पर छोड़ दो, मेरा खेल है, मेरी लाइफ को खराब मत करो। बोला लाइफ तो तेरी बनेगा। मैंने कहा मुख संभाल के बात करना। जब मैंने ऐसा बोला है मुझे आधा रास्ता पे लेके गया। मैंने कहा सुनो, थाना जो है ना मेरा बाप का घर है, और जेल में मुझे लेके जाओगे मेरे ससुराल है, कितना घंटा के लिए मुझे लेके जाओगे, इतना मिनट भी मुझे रख नहीं सकोगे, तुम जानते हो क्या बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है। कह रहे सजाए मुवत है। मैंने कहा कुछ नहीं होता तुम्हारा पाकिस्तान में, बहुत देखा है। तो ऑफिसर की उसका 4 फूल लगा हुआ था। उसने बोला है तुम्हें मालूम है तुम किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं एक गद्दार ऑफिसर से बात कर रहा हूँ। व्हाट? तो मुझे गद्दार बोला? मैंने कहा नहीं आपको नहीं बोला है, आपका काम को बोला है। अगर आप मुझे गद्दार नहीं हो तो मुझे बंद करके दिखाना, चैलेंज आपसे। अगर आप अच्छे हो तब मुझे छोड़ देना। कह रहा तुमने बात उल्टा कहा है,
कहावत तो उल्टा दिया है। मैंने कहा उल्टा नहीं दिया, मैंने सीधा कहावत दिया है कि अभी आपको फोन आएगा ना तो आप मुझे छोड़ दो, तो गद्दार मैं नहीं हूँ, आप हो। तो इसी के अंदर जो है ना ऑफिसर कह रहे बच्ची है, ये वो है सर, दूसरा ऑफिसर जो है। तो ये कहने के बाद मुझे आधा रास्ते गेट पे भी मुझे थाना की CI1 की गाड़ी था, ये मुझे याद है, मुझे गेट पे भी लेके नहीं जा सका। मेरा बाबा का फोन आया, उसने मुझे छोड़ दिया। जब मुझे छोड़ दिया मैंने बोला ऑफिसर क्या बोला था मैंने, गद्दार मैं हूँ, गद्दार आप लोग हो, पैसा मिला तो छोड़ दिया है ना। तो मुझे कह रहा था बेटा अपनी लाइफ खराब मत करो, ये काम तुम्हें जो कराता है, मैंने कहा काम जो भी मुझे कराता है मुझे नहीं मालूम जी क्या है इसमें क्या नहीं है, लेकिन आज मैं पूछूंगा इसमें क्या है। तो कि भाई ऐसा हुआ, जो मैं घर गया हूँ वहाँ पे मुझे मीडिया वाला जो है वो मेरे जाने से पहले मेरा घर में वो टीवी में देख रहा है मैं अरेस्ट हुआ हूँ। ये तो मेरा बाबा जो है वो मुझे कुछ भी नहीं बोल रहा है। मैंने कहा बाबा ऐसा आपने क्यों किया मेरे साथ, क्यों आप गलत काम करते, आपके पास सारे लोग कह रहे इतना पैसा है मेरा बाबा के पास, आप यहाँ से फोन करो, सेठ आबिद के नाम दुनिया में पूरा पाकिस्तान में मशहूर है, बाहर से भी स्मगलिंग किया है। मैंने कहा आप मेरे को देखे ऐसा क्यों। तो एक बात से दो बात से जो ना मेरा अम्मू जो है वो बोला है हाँ ये कि तुम्हारा खून है, देखो आज तुम्हारे ऊपर उंगली उठा रहा है। तो मैंने अपना बाबा को बोला है जो माँ बार बार मुझे यही बात कहता है, आप मुझे चुप करा देते हो, मेरी बाबा कौन है, मेरा खून कौन है, आप मुझे बताओ मेरा खून कौन है, आप मुझे ये काम क्यों कराते हो। ना अगर आपका बेटी हूं मैं तो आपका बेटा से क्यों नहीं कराते हो, ये तो काम लड़काओं का है, तब लड़काओं से कराओ। तो बोलता है देखो वो तो कर नहीं सकता, वो तो भीख है। मैंने कहा आपका उनमें से एक भाई इमरान भाई था, उसमें फोन में बात होता था, कभी मैंने उनको देखा नहीं था। तो मैंने कहा अपने 3 बेटा तो आपका अमेरिका में लंदन में बैठा हुआ है, उनको देखकर ये काम क्यों नहीं कराते हो। तो उस टाइम पे मेरा बाबा जो है वो चुप था, मेरी माँ बकते जा रही थी मुझे, उसको जो है पड़ गया है उसको अब शादी दे दो। तो मैंने कहा शादी दे दो क्यों, मेरी उम्र अभी 11 साल चल रहा है, 11 पे, तो मुझे क्यों शादी दे दोगे। अगर आप मुझे पाल नहीं सकते थे तो आप मुझे मार देता था। आप मुझे सुनाते हो, अरे ये मुझे बताओ जे मेरा खून কোন সো এই কোশ্চেনটা আপনি ফার্স্ট আপনার বাবাকেই করলেন এই ঘটনার পরে, আপনি কিভাবে আজ করতে পারলেন যে ইনি আপনার আসল বাবা না, কারণ আপনার মা বারবার গালি দিতে माँ जो है बार बार यानी कि उस टाइम पे नहीं, यानी कि शुरू से ही यानी कि थोड़ा सा अनबेट करता था वो मुझे। ओके কি বলতো, जो निशान भाई था उससे जो है बात करता था, वो उससे चलता था तो वो मुझे माना करता था, उसके साथ नहीं चलो ये वो, इस तरह की एक्टिविटी करते थे मुझे। भाई वो मुझे बहुत लाइक करता था, वो मुझे कहता था अम्मू की बात नहीं सुनो, तो बीमार मेरे अम्मू भी बीमार रहता था। तो मैंने कहा भैया उनके दिमाग में सिर्फ मेरे लिए ऐसा है, पैसा की तो कमी नहीं है, कोई चीज की तो मुझे कमी नहीं देता था, खाने में, पहनने में, घूरने में। मेरे बाबा के पास 4-4, 5-5 गाड़ी थे, मैं खुद भी गाड़ी में बैठती थी, यहाँ पे वहाँ पे चला जाता था। কটা গাড়ি ছিল? 4-5 गाड़ी है मेरे बाबा के पास। কি ধরনের প্রপার্টি ছিল আমাকে একটু বলবেন? ওখানে यानी कि जमींदार बोलता है, ओके, मतलब शुक्र मिल था, शुक्र की जो आपकी खेत होता है उसका खेत था। उसके बाद जो फल की सब किस्म की बागान था, जो हम लोग बाहर भी सेल करता था। तो वो जो है भैंस था, वो दूध देता था, ये सप्लाई होता था। গরুর কথা বলছেন? গরু ना, वो कालो, ওকে, মহিষ। হ্যাঁ হ্যাঁ, মহিষকে ভ্যাস বলে। ওকে, দু থেকে 250। হ্যাঁ, उसके पीछे 25-30 यानी कि लोग काम करता था दिन रात। মহিষের খামার ছিল। है ओके, काम होता था। और उनकी बीच में मेरे बाबा जो है, और कोहट में जो है वो आलादा है, यानी कि असला की जो अब लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं पता नहीं, पिस्तौल जिससे गांजेज, पूरा जो है उसकी एक उनकी वो था, वो वहाँ से पार्सल होता था, मेरा बाबा पार्सल करता था। उनके साथ भी यानी कि पुलिस बोलो, रेप बोलो, ये सब मिला हुआ था। ओके, तो मेरे बाबा को कभी अरेस्ट नहीं कर सका। तो जब इस तरह होता था तो बाबा वहाँ पर जब मुझे मालूम चला, जब है बाबा ने मुझे खुद बोला जब बेटा हाँ आप जो है इस तरह की लेके आए, आपको एक लेडीज ने बेचा है। तो मैंने उसको बोला है जो आपने मेरे को खरीदा हुआ है। पहले उन्हें बोलना नहीं चाहा, ओके, उन्होंने बोला उसने मुझे लाके दिया ये, तो मैंने कहा नहीं आप मुझे बताओ। আপনি ক্লাস 6 পড়া অবস্থায় এই ঘটনা ঘটার পরেই আপনি বাবাকে বললেন যে তুমি আমাকে বলো যে আমার আসল বাবা কে। या তারপরে আপনার বাবা আপনাকে বলতে চায়নি, তাই তো? তারপরে আপনি জোরাজুরি করা শুরু করলেন। প্রিয়
হ্যাঁ, আপনি বলছিলেন যে আপনার বাবাকে আপনি জিজ্ঞেস করলেন যে আমার আসল বাবা কে। আপনার বাবার নাম কি ছিল বলেন তো? পাকিস্তানি নাম। হ্যাঁ, পাকিস্তানি যাকে জিজ্ঞেস করছিলেন। হ্যাঁ, এমনি নাম ছিল ওর আব্দুল গফুর, কিন্তু ওর সব জায়গায় নাকি নাম ছিল আবেদ শেঠ। আবেদ শেঠ। জি। ওকে, তারপর কি হলো? তারপর যখন বাবা আমাকে বললো, তখন আমার এরকম হলো যে আমার পার থেকে মেয়েই নাই। বাবা কি বলেছিল? আমার জন্ম বাংলাদেশে, আমি একটা মুক্তিযুদ্ধের মেয়ে ছিলাম। বাবাকে আমি এটাই বলছিলাম যে আপনি মিথ্যা বলতেন, কিন্তু সত্যটা কেন বললেন যে আমি আপনার মেয়ে না? আমার কখনো বিশ্বাস হয় নাই। মাকে দিয়ে বিশ্বাস করতাম, মা যখন বলতো, কিন্তু বাবাকে দিয়ে কখনো বিশ্বাস হইতো না। আর এখানে আমি কোথায় যাব? তো বাবা বললো তুমি কোথায় যাবা, তুমি এখানে থাকবা, তোমার বাবা তো আমি। যেটা তোমার সাথে হয়েছে আমি সেটাই তোমাকে বললাম, তোমার সত্যটা জানা উচিত। কেউ তুমি মানুষের কাছে যখন শুনবা তখন আমাকে ঘৃণা করবা। तो बाबा के मैंने बोला है जो बाबा मेरी बाबा जो भी है वो कि जिंदा है ना मर गया है? तो उसने बोला बेटा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे जिसने उठा के मेरे पास लेके आया था, जिसको मैंने 1,30,000 টাকা দিছি ওই সময়, ওই মহিলাটা আছে। আর ও मुझे ये बात बोला है যে तुम्हारी बाबा उसके हस्बैंड को और उसके बेटा को मार दिया था, तो दुश्मनी की वजह से वो तुम्हें लेके आया। और भी 2 बच्चा लेके गया है वो, जो 3 बच्चा उसने लेके आया, लेकिन उनसे एक तुम थी जो मैंने तुम्हारे को लिया है। और उससे मैंने पहले भी उनको ये कहा था जो मेरे पास बेटी नहीं है तो मुझे एक बेटी ला दो, तो वो तुम्हें लेके, और वो मुझे बता सकेगा तुम्हें जे तुम्हारा माँ बाबा तुम्हारा घर कहाँ पर है। আপনি ঘটনাটা যতটুকু বলেছেন, আমি যতটুকু বুঝেছি, আমি একটু আপনার সাথে শেয়ার করতে চাই আমাদের শ্রোতাদের জন্য। আপনার পাকিস্তানি বাবা যেখানে আপনি বড় হচ্ছিলেন, সে আপনাকে বলল যে তোমাকে আমি বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসেছি টাকার বিনিময়ে কিনে, এবং উনি এমন একজনের কাছ থেকে কিনেছেন যিনি আসলে আপনাদের পরিবারের একটা ক্ষতি করেছেন। এই ক্ষতিটার কারণটা কি ছিল? কারণটা ছিল ওর হাজবেন্ড রাজাকার ছিল। মানে যিনি বিক্রি করেছে তার হাজবেন্ড রাজাকার ছিল? ওর ছেলেও ছিল। তো আমার বাবার হাতে কেউ মারা যায়, মানে আপনার বাবার হাতে ওই রাজাকার মারা গিয়েছে। এটা কত সালে মারা গিয়েছে? 1971 সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়। মানে আপনার আসল যে বাবা সে আলটিমেটলি রাজাকারকে মেরে ফেলেছে। পরে রাজাকারের স্ত্রী যিনি ছিলেন, রাজাকার সেলিব্রিটি था, ये दोनों ने मिलके फिर मेरे को उठा के लिया। এটা কত সালে উঠিয়েছে আপনাকে? ये उठाया স্বাধীনতার পরে। হ্যাঁ। আপনার বাবা আসলে পেশায় কি ছিলেন? আমার বাবা আর্মিতে ছিলেন। কোন পোস্টে ছিলেন মনে আছে ওই সময়? আমি তো জানি না। আপনার বাবা কিছু বলেনি? মানে আমার বাবা তো দেখেনি আমার বাবাকে। দেখিনি, জানি না। বাট উনি যখন নিচ্ছিলেন তখন তো পরিচয়টা নিতে পারতেন। কিছু নেয়নি ওনার কাছ থেকে? নেই, ওনার কাছ থেকে কিছু তখন আমার বাবা নেয়নি। যখন উনি আপনাকে নিলেন ভদ্রমহিলার কাছ থেকে 1,30,000 টাকা দিয়ে কিনে, সেই সময়টাতে কি ধরনের ইনফরমেশন? এতটুকুই নিয়েছিলেন, এর বাইরে কোনো কিছু নেননি? কোনো কিছু ডিটেল জানেননি যে কার মেয়েকে নিচ্ছে বা কি অবস্থা? जब मेरे बाबा ये बात मुझे बोलता है तो मैंने ये बात मेरे बाबा को बोला जो लेडीज कहाँ पर रहता है, लेकिन वो मेरे बाबा से अक्सर आता था, मैं देखता था, लेकिन मुझे वो देखते थे लेकिन मुझे बताते नहीं थे जे ये औरत थी। तो जब मेरा बाबा ने ये बात मुझे बताया है तब मैंने उसको बोला है, कह रहा था तुम्हारी एक आंटी आती है ना, बिहारी थी, वो मीरपुर में रहता था। मीरपुर থাকতো উনি? ओके। तो वो जो पाकिस्तान में वो चला गया ऑलरेडी, तो वो ये काम करता था, यहाँ से बच्चा लेके लेडीजों को लेके वहाँ पे पार्सल करता था। ओके। पार्सल होने के बाद उसको गोली लगा था, तो उसकी उम्र बहुत था। जब मैंने उसको देखा हूँ, मिला हूँ, जब उससे मिलने के लिए मैं गया था तब उसकी उम्र जो थी 80 के ऊपर थी। तो वो मुझे सही बात बताया। উনি কি পাকিস্তানি ছিলেন ওই মুহূর্তে নাকি বাংলাদেশে এসেছিলেন ওনার সাথে কথা বলার জন্য আপনি? नहीं, वो पाकिस्तानी ছিল, ও বাংলাদেশি ছিল। ইনফ্যাক্ট ওই ये কাজই করতো, পাকিস্তানে পাচার করে দিত। পাকিস্তান में পাচার করে দিত था। ওকে। উনি বিহারি ছিলেন। হ্যাঁ। আপনি যখন জানলেন ওই মহিলার সাথে আপনি যোগাযোগ করলেন তখন উনি পাকিস্তানে। তারপরে ওই মহিলা আপনাকে কি বললেন? जो देख किरण मैंने जो भी किया है वो गलत था, क्योंकि मेरी मियाँ जो है वो राजाकार था, मेरी बेटा जो था वो राजाकार था, तुम्हारे बाप के हाथ में मर गया, उनकी जिंदगी के साथ है, लेकिन मैंने जो काम किया है वो बहुत गुनाह की काम किया है। सिर्फ तुम्हें नहीं, मैंने और भी काम किया है। सब बातें मुझे बोला है। उसने 35 लेडीज लेके बेचा है पाकिस्ताने। या सब बांगाली? सारे बंगाली। यही मुझे अफसोस होता था जो 30 लाख बंगाली वहाँ पर है, उस टाइम पे थी, इस वक्त और भी ज्यादा है। ओके। और ऐसा ही हुआ है जे एक इसके हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को 2-3 बार यानी कि पंजाबी की हाथ, सिंधियों की हाथ बेचता था। तो ये चीज उसने किया हुआ है। उनमें से जो है उसने 35 यानी कि लेडीज लेके बेचा है, और उसमें से जो है 10% जो है आपकी लड़का लोगों को लेकर बेचा है।
लेकिन जब उसको गोली लगाई, गोली खाने के बाद जो है उसने तौबा किया, हज भी करके आया बाद में उसने। लेकिन उसने मुझे ये बात कहा है, बेटा एक गुनाह मैंने किया है, तुम बांग्लादेश की लड़की हो, तुम्हारे बाप जो था वो आर्मी में था, तुम्हारे बाप के हाथ में मेरा आदमी मर गया, ये बात ठीक है, सच है, और इसलिए मैंने ये काम किया। लेकिन तुम्हें मैंने कुमिल्ला से उठाया था, तुम्हारे बाप कहाँ पर रहता था, तुम्हारे घर कहाँ है, ये मुझे नहीं मालूम। কুমিল্লা কোথা থেকে পেয়েছিল? कुमिल्ला यानी अपना जो बाबा है वो कैंटनमेंट में रहता था। उस टाइम पे उनको हाउस देके गया, वहाँ पर वो रहता था। तो मैं उस टाइम पे नीचे खेलती थी, मैं खेलने के टाइम पे उसने मुझे उठाया। ओके। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा कोई, जो आपने किया वो तो किया ही है, मेरी लाइफ तो जो होना था हुआ, लेकिन आप मुझे अब मेरा थोड़ा सा मुझे एड्रेस देंगे, मेरा बाबा का घर कहाँ था उनका, मैं ऐसा कहाँ ढूंढूं। तो उसने मुझे बोला था कि बेटा ये तो मैं नहीं कह सकती, ये मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन तुम मुझे माफ कर देना। तो फिर ये बात जब उनको हुआ, और मैंने कुछ उनको बोला नहीं, क्योंकि उनको अल्लाह मियाँ जो है, अल्लाह ताला ही उनको जो है माजूर बनाया, तो मैं उससे क्या बोल सकती थी। सजा तो उनको मिल चुकी है, लेकिन मेरी तो जिंदगी जो है वो एक सजा बन गया है। প্রিয় শ্রোতা, আজকে কিরণের জীবনের গল্প এখানে উঠে আসছে। গল্পের শৈশবের যে প্রেক্ষাপট সেটা আপনারা শুনলেন। গায়ের লোম শিউরে ওঠার মতো ঘটনা আমরা বই পুস্তকে পড়েছি, সিনেমাতে দেখেছি, বাট দ্য রিয়েলিটি ইজ টু হার্ড। এই মেয়েটি, এখন তো তিনি ভদ্রমহিলা, যে বয়স তাতে তো অবশ্য তাই বলতে হবে। প্রেক্ষাপটটা যেটা সেটা হচ্ছে, আজকের কিরণের বাবা সেই সময় আমাদের একজন আর্মি সোলজার ছিলেন এবং তিনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তার হাতে নিহত হয়েছিল কোন এক বিহারি রাজাকার। বিহারের রাজাকারের স্ত্রী সেই সময়টাতে বাংলাদেশ থেকে বাঙালিদেরকে পাকিস্তানে পাচার করত, ছোট ছোট বাচ্চাদের থেকে শুরু করে। এবং তারপরে উনি এবং ওনার ছেলে মিলে ওই পরিবারের এই মেয়েটিকে টার্গেট করে পাকিস্তানে পাচার করে দেবার জন্য, এবং সেই কাজটি করা হয় আমি যতদূর জানি ওনার বয়স অনুসারে সেটা স্বাধীনতার পরে, অর্থাৎ 71 সালে সেটা করা হয়নি, 71-এর পরবর্তী সময়ে 1 থেকে 2 বছর পরে এটা করা হয়েছে। আমি কি ঠিক বলেছি? তার মানে ভদ্রমহিলা মানে বাংলাদেশ ছেড়ে পাকিস্তানে গিয়েছে কবে? ও আপ ডাউন করতে रहता था। ও আপস এন্ড ডাউনের মধ্যেই ছিল। ওকে। একেবারে চলে গিয়েছে পাকিস্তানে কবে? একবার পাকিস্তানে গিয়ে बहुत साल हो गया है। ওকে। ये तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं था, लेकिन उसकी जब ये यहाँ पर कोई भी नहीं था, जब उसको गोली लगा था, जब ये लेके जाता था, ये तो बॉर्डर से लेके जाता था, ये तो हवाई जहाज में नहीं लेके जाता था। ओके। तो रास्ता में इसको इंडिया में गोली लगा था, उसके बाद और नहीं आया। এটার পরে আর সে ফিরে আসেনি? না, এটা পরে আমার পরে ফিরে আসছে, আমার পরে কয়েকজনকে নিয়ে গেছে। ওকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে এই যে মেয়েদের কিভাবে নিয়ে যাওয়া হতো, কি করলো এদেরকে? ও বেশ তো বিভিন্ন পরিবারের কাছে বিক্রি করে দিত, এবং এই মেয়েদেরকে দিয়ে এই ধরনের কাজ করানো হতো, স্মাগলিং এর কাজ, ঘরের কাজ। হ্যাঁ হ্যাঁ। চলুন আমরা আরো সামনের দিকে আগাই। তারপরে কি হলো? তারপরে আর কিছু বলার নাই, কিন্তু আমার এটাই হয়তো বাঙালিদের জন্য আমার অনেক অ্যাডভান্টেজ ছিল। যে বাঙালিকে আমি দেখতাম ওদেরকে আমি বলতাম আমার বাবা মা চিনো, কেউ আমাকে ইশারা দিত না। তো আমার বাবা তো একদিন শুনে ও আমাকে বললো কি, কিরণ তোমাকে আমি নিয়ে যাব বাংলাদেশে, তুমি এভাবে কাউকে জিজ্ঞাসা করো না। আমি এটাতে আমার বাবা ব্যথা পাইতো আর কি, আমি যদি বলতাম এভাবে, কেন ও তো আমাকে মেয়ের মতো পালতো। তো আমার মা সে একটু বিলেক্ট करतो, और भाई আমাকে आदर करतो। तो मैंने बोला बाबा कहाँ ले जाओगे, मेरी लाइफ तो मैं स्कूल भी नहीं जा सकती। वहां से अच्छा हुआ जब मैंने स्कूल में गया, स्कूल में मेरे को पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि मैं अरेस्ट हो गया। बाकी जितना भी सोसाइटी के लोग है वहाँ पे अनमिडल तो कोई भी नहीं है, सब एजुकेटेड के लोग है। तो मेरे साथ कोई भी नहीं मिलता था, तो मुझे स्कूल से निकाल दिया। जब मुझे निकाल दिया तब मुझे गुस्सा आया बाबा के ऊपर। मैंने कहा आपकी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गया, मैं स्कूल में भी नहीं जा सकती हूँ। तो बाबा कह रहा था देखो जो हो गया तो हो गया, तुम घर पे पढ़ लेना। तो मैंने कहा स्कूल की जो लाइफ है मेरी, आप मुझे घर पे कहाँ से लाके पढ़ाओगे, वो की मुझे मिलेगी, मुझे खेलना है, मुझे कूदना है, मैं तो ऐसा रह नहीं सकती हूँ। तो बाबा कह रहा था क्या करोगे, तो मैंने कहा क्या नहीं करना, मुझे काम करो, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे अपने बेटाओं के साथ बाहर भेज दो। तो मेरा अम्मू जो था उसने बोला नहीं इसको बाहर नहीं भेजना, इसको शादी दे दो। तो शादी क्या चीज होता था इस टाइम भी मैं नहीं समझ में आता था, शादी क्या होता था। तो मैं बाबा को बोलता था शादी किससे बोलते हैं, तो बाबा कह रहा था हाँ तुम जो बोलते हो ना, जो दुल्हन लेके जाएंगे तो ये करेंगे तो तुम घर आओगे, इससे शादी बोलते। मैंने कहा बाबा अब तुमने शादी नहीं करना, तो फिर मुझे ये काम करना है, तो मुझे शादी नहीं करना। अब मुझे वो चीजों को मैंने दिमाग से फेंक दिया, जो मेरा माँ कौन था, बाप कौन था, क्योंकि मुझे रहना यहाँ पर है, ऐसा तो मैं जा नहीं सकती हूँ बांग्लादेश में। और बाबा मुझे ये बोलता था तुम बांग्लादेश में अभी जाओगे तो माँ बाबा कहाँ पर है, किससे कहाँ पर ढूंढोगे, वो ये चाहते थे वो हमारे साथ में ही रहे। ओके। तो मैंने बाबा को बोला ठीक है बाबा मैं आपको ये काम करूंगा, मुझे शादी नहीं करनी है।
लेकिन मेरा माँ जो था वो बीमार था, उसको कैंसर था। वो बोला नहीं, ये शादी करेगी, शादी करके इसका जो है ये सब कुछ इसका हवाला करो, और बाकी जो है छोटा भाई है उसको लेके बाहर चला जाओ। तो मैंने कहा नहीं बाबा, मुझे रहना है तो आपके साथ में रहना है, मुझे कभी भी नहीं जाना है। ये बात लेके बहस होता था। उसी की बात यानी कि जब मेरा उम्र 12 साल में यानी कि चली थी राइटिंग में, तब जिससे मेरी शादी हुई थी वो मेरे बाबा के साथ ही काम करता था कोहाट में। 12 সালে আপনার বিয়ে হয়ে গেল? 11 সালে यानी कि বিয়ে হয়ে গেছে। 11 সালে বিয়ে হয়ে গেল? হ্যাঁ 11 সালে। যখন আপনার স্কুলে পড়া বন্ধ হয়ে গেল? আর যাকে তোমার বিয়েটা দিচ্ছে না, তোমার বাবারই কাজ করতো, মানে এই অবৈধ কাজটা করতো? হ্যাঁ। ছেলেটার বয়স কত ছিল? ও ডাবল বয়স ছিল। আপনার চেয়ে ডাবল বয়স? হ্যাঁ ডাবল বয়স ছিল। ও কি পাকিস্তানি ছিল? नहीं वो पाकिस्तानी গেছে নাকি যখন বাংলাদেশে পাকিস্তান এক था তখন ওর পুরো ফ্যামিলি পাকিস্তানে ছিলেন। ওকে, মানে অরিজিন পাকিস্তানের না, কিন্তু আলটিমেটলি ও পাকিস্তানেরই নাগরিক। ইয়া ওকে ফাইন, তারপর? তো ও এখানে আর্মিতে ছিল বাংলাদেশে, এখানে পুলিশ মারার পরে তারপর ও এখানে যে পলাশ ছিল। কে আর্মিতে ছিল? আপনার হাজবেন্ড? হ্যাঁ वो आर्मी ছিল বাংলাদেশে? হ্যাঁ বাংলাদেশে। তারপরে কি হয়েছে? यहाँ पर एक पुलिस वो मार देता है। ओके, एक पुलिस मार के उसकी केस पड़ जाता है उसका, तो वहां से वो पाकिस्तान निकल जाता है। ये मुझे उसने बताया था, उसके बाबा उसके पेरेंट्स भी बताया था। 71 সালে করেছেন? 71 সালের পরবর্তী সময়? इससे पहले 71 এর আগে করেছে এই কাজটা, এবং তারপরে ও পাকিস্তানে চলে গিয়েছে। এটা হচ্ছিল আপনার হাজবেন্ডের কাহিনী। ওকে, তার মানে ওখানে পুরো পরিবার সহ চলে গিয়েছে? है उसका फैमिली वहाँ पर। ওকে, তারপর? 11 साल में मेरे को मेरा माँ ने शादी दे दी, जिसको शादी दे दो। उसने शादी किया, उसको ये नहीं पता था जब वो शादी करा जब मैं उनकी पालक बेटी हूँ, ये उनको नहीं मालूम था। उनको ये मालूम था, मेरी माँ ने उनको ये बोला है जे हम तो बाहर चला जाएंगे, ये बेटी को जितना भी प्रॉपर्टी सब इसको देके चला जाएंगे। वो प्रॉपर्टी की लालच में मुझे शादी की। जब मेरे को शादी की वहाँ पर वो आता जाता था, लेकिन उसके साथ मेरे साथ ऐसा कोई फिजिकल कुछ नहीं था। ओके, वो मैं समझ में भी मुझे नहीं आती थी। तो ऐसा हुआ था, मेरा जो भाई जिशान था उसके जो दिल में सेहत था उसको इंजेक्शन लगाने लगे, तो वो लड़का मर गया है, मेरा भाई जो है छोटा। हाँ, जब अस्पताल में मैं थी तो वो भाई ने मुझे बताया, जो किरण देखो जो भी हुआ, लेकिन तुम जो है ना सेलिम के पास नहीं रहना। সেলিম মানে আপনার হাজবেন্ড? या ওকে, तो मैंने कहा भैया क्यों, कि वो तो मुझे कुछ नहीं बोलता है। कह रहा है नहीं तुम्हें नहीं मालूम है, वो सबसे तो खराब इंसान, वो मेरा बाबा से भी खराब है। अच्छा, वो उसके मेरा जो अब्बू है उससे भी नफरत करता था, ये काम से नफरत करता था, मेरा जो भाई है घृणा करता था। ओके, कह रहा था तुम्हारा जिंदगी जो है वो बाबा ने खराब किया है। ये जो बात उसने बोला, मैंने कहा जो कुछ हो गया है। ये बात कहने से फिर जो है मेरा बाबा जो है, मेरा बाबा को उसने एक काम में, जो कंपनी थी उस कंपनी में मेरा बाबा को उसने काम में फंसा दिया। আপনার হাজবেন্ড? या কি ছিল ব্যাপারটা, ফাঁসালো কিভাবে? फंसाया था उसने, शुक्र में आसला रखा हुआ था, पूरा पैकेट की पैकेट। ओके, ये गाड़ी वहाँ से जो है हमारे वहाँ ट्रक होता था, पूरा वो ट्रक जाता था, तो मेरी बाबा के नाम पर उसने पर्ची काटा है। আমি বুঝতে পারছি, আপনি যদি একটু বাংলাতে বলেন ব্যাপারটা আসলে কি ঘটেছিল। কোম্পানি ছিল আমাদের, তো वो কোম্পানিতে আপনার গার্মেন্টস এর কাম হতো। হ্যাঁ, তো বোর্ডের ভিতরে বড় বড় আপনার যে রিভলভার আছে, রাইফেল আছে, ওইগুলা এনেকে পুরো ট্রাক বোর্ডের মধ্যে ভরে, কেন নাম তোমার বাবার ইসে, তো বোর্ডে দিয়ে আমার বাবাকে এনেকে ফাঁসাইছে। আপনার বাবার জিনিসপত্রের মধ্যে এই জিনিসগুলো ঢুকিয়ে দিয়ে পুলিশকে ধরিয়ে দিয়েছে বা কিছু একটা করেছে, তাই তো? এরকম আমার বাবা ওটা জানতে পারে। ওকে, ফাঁসানোর কারণটা কি ছিল? এর যে ছেলে মেয়ে ওইখানে তো আর নাই, তা আমি যদি ওর সাথে কিছু করতে যাই তাহলে তো আমার বাবা ওকে ছাড়বে না। আর আমার বাবা আমাকে প্রচুর আদর করতো, সে যদি আমাকে দিয়ে ভুলও করাইতো, ইনফ্যাক্ট প্রচুর আদর করতো আমাকে সে। একটা বিষয় যেটা হচ্ছে যে আপনার বাবার তো কর্মচারী ছিল সে, তাই না? পার্টনার ছিল এক ধরনের। তো আপনার বাবার উপকার মানে তো তার উপকার, তাহলে বাবাকে কেন সে ফাঁসাতে যাবে? সবকিছু তো আমার বাবার নামে, তাকে তো শুধু মনে করেন যে ডেলিভারি করে, ওর যেটা দেওয়া হয় ওইটাই দেওয়া হয়। ব্যাপারটা কি এরকম ছিল যে আপনার বাবার সমস্ত কিছু সে হাত নিয়ে যাচ্ছে? ওকে, ওকে, হ্যাঁ। আর আমরা আম্মু ওটাই বলছে তাকে, আমরা তো চলে যাবো, সব প্রপার্টি ওর নামে, তুমি ওকে বিয়ে করো। ওই ইসের জন্য সে মনে করছে একটা মেয়ে, আর ওই সময় সে জানে নাই যে আমি এনেকে তার পালক মেয়ে। বিয়ে করার আগে জানতো না আপনি তার পালক মেয়ে? না না, সেটা সে জানতো না। প্রিয় শ্রোতা, গল্পের মোড়টি কোন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতেই পারছেন, এবং শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ইভেন্ট ইউ কান্ট ইমাজিন। আমরা ছোট্ট আছে, আপনি বলুন তারপরে। আপনি যেটা বলছিলেন যে আপনার যার সাথে বিয়ে হলো সে আপনার বাবাকে ফাঁসাতে চাইলো যে কোনো ভাবেই হোক, তারপর ওটা আমার বাবা জানতে পারে যে এমা করে, তখন আমার বাবা বলে কি যে আমি
আমার ছেলের কথাটাও শুনি নাই, আমি অনেক খারাপ করছি তোকে ওকে বিয়ে দিয়ে। আমি বলছি, বাবা কেন? তা বলছে যে আমাকে যে ফাঁসানোর করছিল সেটা इनफैक्ट तेरी मियां ने किया था। तो मैंने कहा नहीं बाबा, वो तो ऐसा नहीं हो सकता, क्यों करेगा वो ऐसा? है ऐसा ही किया है। तो ये बात को जो है मैंने छोड़ दिया। फिर वो आया, वो आता था 15 दिन महीना में इस तरह आता था, क्योंकि मैं छोटी थी। जब वो आता था तो उसके साथ मेरी ऐसा कुछ होता नहीं, मेरे से वो बहुत बड़ा था तो मैं उसको सेलिम भाई कह के ऐसे करती थी। जब वो आया था तो उसको मैंने ये बात बोला है, मैंने कहा भैया आप ऐसा क्यों किया, आपको क्या चाहिए था जो आप मेरा बाबा को फंसाने के लिए ऐसा किया? तो उसने कहा किसने बोला तुम्हें? तो मैंने कहा सब लोग बोल रहे हैं, मेरा बाबा की जिसने आपने किया था सभी आपका खिलाफ है, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो कह रहा था ना ये मुझे फंसाने के लिए, तुम्हारा जो मामू लोग है ये है वो है, वो फंसाने के लिए मुझे ऐसा कर रहा था। ये जो कुछ हो गया फिर वो मेरा बाबा के पास माफी मांगा है, जो मैंने ऐसा किया नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं माफी मांगता हूँ। ऐसा था जो उसके हाथ में भी बहुत सारा लोग था, मेरे हस्बैंड के पास भी बहुत सारा लोग था, ऑफिसर वगैरह, ये लेके वो ज्यादा चलता था। तो ये ऐसा होता था, तो मेरे को देख के जो है ये काम यहाँ से मैं करता था, मैं फकड़ से काम करता था। जे स्मगलिंग की काम जो आता था वो मैं लेके जाता था, लेके आता था, मुझे खुशी महसूस होता था। এরপরে আপনি স্মাগলিং এ জড়িয়ে গেলেন? है शुरू से ही ये काम मैं करता था। स्कूल भी मेरा अब नहीं जाती हूँ, सिर्फ यही करती हूँ मैं अभी। আচ্ছা, এরপরে বাবাকে আপনি যখন এই কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করলেন বা কিছু একটা হলো, তারপর আপনি এটা বন্ধ করেননি, করেছেন আপনি রেগুলারলি? ओके। उसके बाद मुझे 14 साल में जो है वो मैं भी तो वो आया मेरे पास आके, जो है उस टाइम पे मेरी बाबा फिर अमेरिका चला गया था मेरी अम्मू के लेके। अमेरिका चला गया, मेरे को उसको बोल के गया जो बेटा यहाँ पर तुम संभाल लेना, और वहाँ पर तो सेलिम तो है, बाकी लोग तो है ही। तो ये करने के बाद जो है मैंने कहा ठीक है। तो मेरी जो हस्बैंड है वो जैसा लड़की बड़ी होती है तो इस तरह बड़ी है, तो उसने मुझे बोला है जे मेरे साथ घूमने चलोगे? तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना। तो उसने बोला क्यों नहीं जाओगे? तो मैंने कहा घर पे कौन रहेगा, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, ये सब है। तो कह रहे थे कर्मचारी है, जितना नौकर चाकर है क्या करने के लिए है? तो मैंने कहा चलो लेकिन शाम तक आ जाओगे। तो बोला था नहीं 2 दिन के लिए जाना है। तो मैंने कहा कहाँ जाना है? कहता है लाहौर में जाना है। तो इस्लामाबाद से लाहौर 2-3 घंटे का रास्ता था। तो ड्राइव भी वही करता था गाड़ी की। तो होटल में मुझे वहाँ पर लेके गया। जब होटल में लेके गया तो रात हुआ, तो उसने मुझे बोला है जे किरण एक बात तुम मुझे बताओगे? तो मैंने कहा हाँ पूछो क्या बात? तो कह रहा था जे ये जो तुम्हारा बाप है ये तुम्हारा अपना बाबा है? तो मैं बोलता था है मेरे अपना बाबा है। क्यों क्या हुआ? मैंने सुना ये तुम्हारी अपना बाबा नहीं है, तुम्हें कहाँ से उठा के लेके आया? लेकिन उसने मुझे एक गंदा गाली दिया है, जो खराब होती है तुम्हें वहाँ से उठा के लेके आया, और इसलिए तो तुम्हें देकर यहाँ पर गंदा काम कराता है। अगर तुम्हारे बाप होता था तो तुमसे क्या काम कराता था वो? तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा वो सही कह रहा है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो जो है वो है। तो कह रहा था देखो मैंने तुम्हें शादी क्यों किया मालूम है? तो मैंने कहा किस लिए मेरे को शादी किया? तुम्हारे नाम जो प्रॉपर्टी है इसके लिए मैंने शादी किया। মানে আপনার যে প্রপার্টি আছে সেই প্রপার্টির জন্য ও আপনাকে বিয়ে করেছে? হ্যাঁ। ओके। मैंने बोला सेलिम भाई देखो मेरे पास जो प्रॉपर्टी है इससे तो ज्यादा तुम्हारे पास है, तो इससे तुम प्रॉपर्टी से क्या करोगे? तुम शादी मुझसे किया, प्रॉपर्टी से तुम्हें क्या करना है? अगर तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए ठीक है, मैं अपना बाबा से कह के तुम्हें प्रॉपर्टी दिला दूंगी। क्या चाहिए तुम्हारा? मेरा बाबा का बिजनेस चाहिए? मेरा बाबा ऐसा भी तुम्हें बिजनेस वगैरह सब दे के चला जाएगा, क्योंकि वो तो यहाँ पर रहेगा नहीं है, तो चला जाएगा। और ये काम भी वो नहीं करेगा, वो चला जाएगा। काम करेगा तो बड़ा काम करेगा, छोटा मोटा काम नहीं करेगा। तो बोलता है ये बात है? मैंने कहा हाँ। तो कह रहा था ये सब चीज तुम्हारा नाम हुआ है? मैंने कहा ये तो मुझे नहीं मालूम, मुझे मेरा नाम हुआ है क्या, इन चीजों को मुझे मालूम ही नहीं है। जो प्रॉपर्टी मेरे नाम देगा तो इससे क्या होगा, इससे क्या नहीं होगा, ये मुझे कुछ नहीं मालूम। तो मैंने कहा ये कुछ नहीं मालूम है। तो मुझे वो कह रहा था तुम्हें पता है जो तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारी रिलेशन था तुम्हें मालूम है? मैंने कहा क्या बोल रहे हो, ये रिलेशन किसे बोलता है? तो मेरा भाई के साथ तो मुझे कोई रिलेशन नहीं था, और वो मर गया है, उससे क्या रिलेशन करना है, वो तो बड़ा भाई था मेरा। तो कह रहा था हाँ मैंने सुना है उसने तुम्हें शादी करने के लिए चाहा। मैंने कहा ये बात तो मैंने कभी नहीं सुना, आपने कहाँ से सुना? तो ये 1 बात से 2 बात से लड़ाई हो गया। तो उसने मुझे बहुत मारा है, जो तुम्हें बताना है जो इससे तुम्हारी कोई रिलेशन था नहीं था। मैंने कहा देखो उसके साथ मेरी कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन उसने नहीं माना, वो मुझे बहुत तशद्दुद किया है, बहुत मारा है मेरे को। जब मेरे को मारा मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा फिर भी मैं उसके नाम पे झूठ नहीं बोलूंगी, वो मर गया है उसके नाम पे झूठ, मेरे भाई के नाम पे तुम ऐसा कुछ भी नहीं बोलोगे, बेशक तुम मुझे छोड़ दो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। उसने क्या किया, रात के 12 बजे 2 लड़की लेके आया। तो मुझे कह रहा था 2 लड़की के साथ मुझे रहना है और तू ना नीचे जाके लेट। तो मैंने कहा लड़कियां कौन है? तो कह रहा था लड़की तेरी तरह नहीं है, बहुत अच्छी लड़कियां है।
तो मैंने कहा लड़की के साथ तो मेरा रहता रहो। तो ऐसे ही वहाँ पे होटल थी, उसमें डबल बेड था, मैं ऐसे करंट बिछा हुआ था, तो मैंने नीचे लेटा है, तो नीचे लेटा हुआ है वो लड़की के साथ वो फिजिकल रिलेशन कर रहा था। जब वो करता, मुझे एक लड़की ने मुझे बोल रहा है जे ये तुम्हारी कौन है, तो मैंने कहा ये मेरा हस्बैंड है। तो कह रहे कैसा हस्बैंड है तुम्हारी, जो तुम्हारे सामने जो है और इस तरह ही कर रहा है, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? मैं महसूस करके क्या करूंगी, तुम मेरा जिस्म देखा है? उसका जो बेल था उसने मुझे बेल से मारा है। तो मैंने कहा तुम मेरा जिस्म देखा है, सिर्फ मेरा बाबा को आने दो। ये बात मैंने उस लड़की को बोला, वो लड़की ने उसको बता दिया, और जब बता दिया तो उन लड़कियों के सामने मुझे मारा है। तो मैंने एक लड़की ने बोला है सेलिम देखो तुम्हारी बीवी छोटी है कि अनछोटी है, इससे तुम्हें पता चलेगा। कैसा पता चलेगा? तो बोल रहा था शादी होने के बाद कभी इसके पास आए हो? तो कह रहा था इसके पास कैसे आऊँ, ये तो बड़ी हुआ अभी, तो इसके पास कैसा आता था? तो बोला था देखो अगर इसके पास पहले अगर तुम इसके पास आओगे ना, तो वो एक चीज बताया है उसको, जो इस तरह अगर होगा, अगर उसकी ब्लड आया है तो जाके समझोगे वो उसके साथ किसी के साथ फिजिकल नहीं हुआ, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझोगी तो उसका फिजिकल हुआ। तो इन बात को मेरी समझ में नहीं आई। तो वो उन रातों से राहत सेलिम को बोला है, वो बोल के फिर वो पूरी रात भर भैया उनके साथ था। मैं रो रही हूँ मेरे सामने, सो के फिर सुबह उठ के बोला था, मैंने कहा मुझे घर छोड़ के आओ। कह रहा था तू छोटी है कि अनछोटी है, ये मुझे आजमाना नहीं है क्या? ये मुझे आजमा के परीक्षा करके देखना है, उसके बाद अगर तू छोटी हुआ तो फिर तेरे को जाके छोड़ूंगी, अगर तू अनछोटी हुआ तो तेरे को यहाँ से काट के फेंक दूंगा। मैंने कह दो ये भी बेहतर है मेरे लिए, मेरे पास तब कुछ भी नहीं रहा, ये भी बेहतर है। तो मुझे क्या किया, उस दिन वो हॉस्टल पे रहा, उस होटल पे भी वो जो काम है उसका काम भी सिलसिला में गया। तो दिन भर बाहर रहा, तो होटल वाला आया, होटल वाला आके बोल रहा है आप कुछ खाना है क्या? मैंने कहा नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ मेरे लिए चाय भेज दो, और मेरे लिए ना दर्द की जो है ना वो गोली भेज देना। तो उसने कहा था अच्छा। फिर उसने 5-10 मिनट के बाद उसने खुद ही लेके आया। आने के बाद फिर मुझे बोल रहा था एक बात आपको बोलूं आपको? मैंने कहा हाँ बोले। तो कह रही है आपका कौन है? मैंने कहा मेरा हस्बैंड है। कह रही है तो अक्सर मेरी यहाँ पर आता है और ये लड़कियां लेके आता है, आपकी माँ बाप नहीं है क्या? तो मैंने कहा हाँ मेरा माँ बाप है। कहाँ पर है? मैंने कहा मेरा माँ बाप जो है वो बाहर है। तो ये बात कहने पे जो है ना फिर उसने मुझे मेडिसिन दे के चला गया। भैया यकीन करे वो आया है, आने के बाद मेरे से पूछा है मेडिसिन खाया? मैंने कहा हाँ। किसने देखे गया? मैंने कहा वो देखे गया। वो मुझे इतना मारा है उसके ऊपर जो मैं आपको बता नहीं सकती। जितने उसके साथ बात क्यों किया, तूने उसके साथ भी रिलेशन किया, इस तरह के मुझे रिलेशन क्या चीज होता था ये मुझे उस वक्त नहीं मालूम थी, मुझे नहीं मालूम थी। तो मैंने कहा मुझे इस तरह की क्यों मार रहे हो? तुम्हें मेरा बाबा का प्रॉपर्टी चाहिए और मैं दे दूंगी, लेकिन मेरे बाबा का पता हुआ जो तुम मुझे इस तरह की मारा हो तो मेरी बाबा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर तुम्हें बचना है तो तुम मुझे मार दो। तो उसने मुझे कहा था तू बड़ी बड़ी बातें करती है ना, तेरी अपना बाप थोड़ी है, तेरी बाप के साथ भी तेरी फिजिकल थी। इस तरह के भैया उसने मुझे बोला। तुमने कुछ नहीं कहा उससे, और उससे कह के भी तो कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने कहा ठीक है जो तुम समझती हो वही है, लेकिन मुझे घर लेके चलो। कहता तुझे घर लेके जाऊंगी रात के बाद, कल सुबह लेके जाऊंगी। तो फिर वहाँ पे जो रात रहा, जाके उसको जो रात रहा, बोला था मैं जाऊँ यहाँ पर मर जाएगा किंतु किसी को तू बुलाएगा नहीं, यहाँ पर कोई आएगा नहीं, तो किसी से बात नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है। उसने रात हुआ तो फिर ये आया, आने के बाद 1 बजे फिर उसने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन किया। आप यकीन करेंगे, खुदा मेरी गवाह है, पूरी उसने शराब पी के मेरे पास आया और पूरा यानी कि उसने जो चाहा उसने करके जो है मेरे को हॉस्पिटल में लेके गया। मुझे 5 टंका आया हुआ है। इस तरह की उसने हरकत की है। हरकत करके बोला था हाँ मैं नहीं मानती इन चीजों को, तेरे साथ तेरे भाई के साथ फिजिकल, तू एक बार बोल तेरे साथ भाई के साथ फिजिकल थी। सिर्फ वो मेरे भाई बीच में आ जाता था, और वो भाई को लेके और रिलेशन से मेरे भाई को लेके। तो मैंने कहा देखो मेरा उस भाई को लेके जो मर गया है उसको लेके तुम ऐसी बात कर रहे हो, अगर तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मेरे पास क्या है वो मुझे बताओ, मैं वही करूंगी, लेकिन मुझे तो शुद्ध मत करो। तो ये बात कह के फिर उसने मुझे लेके गया। ये यहाँ से मेरे जहन्नम शुरू होता है। घर लेके जाके बोला था ये बात तो किसी को भी नहीं बोलेगा। मैंने कहा क्यों नहीं बोलूंगी? फिर अगर तू किसी को भी बोलेगी ना तो तेरा बाप को जो है वो मैं फंसा दूंगा, और तेरे बाप को जब लेके जाएगा तेरे पास तो फिर कोई भी नहीं रहेगा, और तेरी माँ को भी मैं मार दूंगा। ठीक है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम ये वादा करो जो तुम मेरे भाई के साथ मेरी ये बदनाम नहीं करोगे, बाकी तुम कुछ भी चाहते हो मैं दे दूंगा, लेकिन ये चीजें मत करो। कहता अच्छा ठीक है। उसके बाद महीना हुआ, मेरा अब्बू आया। आने के बाद मैंने अब्बू को कुछ भी नहीं बताया। तो भैया उसी में से ही मेरे को वो मेरा जो बेबी रह गया। কয় মাস পরে? ये 3-4 কত বছর পরে?
রাইটিং এর 14 বছর এনগেজমেন্ট হচ্ছে সময় ओके हमारा बेबी नहीं रह गया। जो बेबी रह गया अब वो मुझे ये कह रहा है जो ये बेबी मेरा नहीं है। আপনার হাজবেন্ড বলছে যে বেবিটা আমার না। हाँ तो मैंने कहा किसका है, तो बोला था ये तेरा बाप का होगा, इस तरह की करके नहीं कि नहीं तो तेरी यहाँ की कोई होगा, तेरा यहाँ पर कौन है क्या। मैंने कहा देखो इस तरह की बात मत करो। প্রিয় শ্রোতা, আমি এখানে আপনাদেরকে একটু নোট করতে চাই। দেখুন, ওর হাজবেন্ড ওর সাথে যে আচরণটা করছে সেটা জানার পরে যে ও আসলে আশ্রিতা, বা ওকে আশ্রিতা ঠিক বলা যায় না, ওকে কিনে নিয়েছে কোন একটা জায়গা থেকে। আপনি কি ডিটেল বলেছিলেন আপনার হাজবেন্ডকে যে আমাকে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসছে? হ্যাঁ পরে যখন ও জানতে পারে ইনফ্যাক্ট কখন জানতে পেরেছে? ও আগে তো গেস করেছে, কারো কাছ থেকে শুনেছে, সন্দেহ করেছে, সন্দেহ করার পরে তো খারাপ আচরণ শুরু করলো কন্টিনিউয়াসলি, এবং তারপর হোটেল में बोला था उसको पूरा डिटेल। রাইট, হোটেলেই আপনি বলে দিয়েছিলেন যে আমাকে বাংলাদেশ থেকে নিয়ে এসছে এরকম কিছু? वहाँ पे मैंने से पूछा था। ওকে, হোটেলেই আপনি বলে দিয়েছেন। তাহলে দেখুন, হোটেলে যখন ওর স্বামীর কাছে ও বলে দিল, তার আগে তো ওর স্বামী কিছু জানতো না, ওর বাবা সেটা গোপন করে তাকে বিয়ে দিয়েছে, এবং যখন বলে দিল স্বামীকে যে হ্যাঁ আমার বাবা বলেছে যে বাংলাদেশে কোন এক মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ছিলাম আমি, যিনি আর্মি পার্সন ছিলেন, এবং তার কাছ থেকে চুরি করে নিয়ে এসে আমাকে পাকিস্তানে পাচার করা হয়েছে, এটা ওর হাজবেন্ডের কাছে বলার পরে ওর হাজবেন্ড ওকে নিয়ে যে অকথ্য কথাগুলো বলছে, যে ওর ভাইয়ের সাথে ওর ফিজিক্যাল রিলেশন ছিল, ওর বাবার সাথে ওর ফিজিক্যাল রিলেশন ছিল, এবং এই কাজগুলোর জন্যই মূলত ওকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। এই ধরনের ভাবে ওকে অত্যাচার করা হচ্ছে মেন্টালি এবং ফিজিক্যালি। ওকে, তারপর বেবি অস্বীকার করলো। उसने बोला ये बेबी मेरा नहीं है। मैंने कहा ठीक है तुम्हारा नहीं है तो मैं क्या करूँ, कह फेंक दे इसे। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं फेंकूंगी इससे, मैं क्यों फेंकूं, मुझे कभी भी नहीं फेंकूंगी। तो बोला था तू नहीं फेंकेगा ना तो तेरा बाबा को मैं फेंक दूंगा, उसे मार डालूंगा। मैंने कहा मेरे बाबा को तुम हाथ लगा के देखो और मेरा बाबा तुम्हें पता चलेगा ना, देखो तुम्हें क्या करता है। बोलने के वो मुझे ये धमकी दे तू कुछ करेगा तो तेरा बाबा को मार दूंगा, तेरी माँ जो है उससे मैं मार दूंगी। तो मैंने ये बात कैंसिल, मैंने कहा बेबी मैं कभी नहीं फेंकूंगी। तो मेरे बाबा की बात मैंने बोला है, तो मेरे बाबा ने उससे बोला है, उसने बोला है देखो अब तो तुम मेरा जो है दामाद हो तो मेरी दामाद के ऊपर हाथ नहीं उठाना है। मैं ये चाहती हूँ जो तुम अच्छे रुख में प्रॉफिटी चाहिए मैं प्रॉफिटी दे दूंगी, लेकिन मेरी बेटी को नाजायज बात मत बोलो। मेरे बाप को बोला ये मैंने कुछ बोला ही नहीं हूँ, आपका बेटी तो ऐसे ही बोल रहा है, और वो जो है यहाँ जाता है वहाँ जाता है, वो मेरे साथ बात नहीं करता, मुझे पसंद नहीं करता। नहीं मेरे बाप बोलते ऐसी है ही नहीं। मेरी माँ जो है मुझे कम लाइक करती थी, वो भी बोलता मेरा बेटी ऐसा नहीं है। तो ये बात कहने पे तुम्हें ये जमीन जब जितना भी ये सब कुछ मैं तुम्हें देके चला जाऊंगा, और तुम बेबी क्यों फेंकने के लिए बोल रहे हो। कह रहे नहीं तो ये बात मैंने नहीं बोला। वो भैया नहीं माना। तो मेरा बाबा क्या किया, वो जितना भी वो जायदाद थे सब मेरी बेबी के नाम पर, इसके नाम पर कुछ भी नहीं करूंगा। तो जब बेबी को नहीं मान रहा है, ये जितना भी जायदाद है वो उसके नाम पर कर दूंगा। तो उसके बाद मेरा बेबी हुआ, मेरी बेबी हुआ, मेरी बेटी हुई है। ओके। तो मेरा बेटी की वहाँ पर जो अकीका करते हैं, अकीका दिन मेरा बाबा सब मेरे नाम पे कुछ भी नहीं रखा, सिर्फ एक बांग्ला मेरे नाम पर रखा था, बाकी सब मेरा बेटी के नाम पर की পরিমাণ প্রপার্টি দিয়ে দিল? इतना प्रॉपर्टी दिया है जो उसका जिंदगी मेरी जिंदगी मेरे बाप नहीं भी हो तब भी चला जाएगा। কি নাম রাখলেন আপনার মেয়েটার? कायनात। কায়নাত। ওকে। तो मेरे जो है मेरे बेटी के नाम पर वो किया। अब वो मेरी बेटी के नाम पर जो किया है इसलिए उसको ज्यादा वो है, जो वो बेटी के नाम पर क्यों किया, इसके नाम पर भी नहीं किया, बेटी के नाम पर क्यों किया। अब जो है मुझे इस तरह की जो है वो कहता है तेरी बाप जो है मुझे कुछ नहीं, मेरे बाप बोलते तुम्हें क्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी तो तुम्हारे पास है। मेरा बाबा उसको जब शादी हुई उसी टाइम पे इसको गाड़ी दिया, तो फिर जो भी चीज वहाँ पर देना होती है लड़की के लिए वो सब चीजें मेरा बाप दिए। तो तुम्हें कुछ भी चाहिए, तुम्हें जायदाद नहीं चाहिए, तुम कमा रहे हो, ये सब तुम्हारे बेटी के नाम पर किया हूँ। अब तो मेरे बेटी की कुछ भी नहीं है, सब मेरे बेटी के नाम पर किया हूँ। इसी तरह करके भाई वो जो पीछे पीछे से जो है मेरा बाप की जितना भी वो थे पीछे जो दौलत थी जो जमीन थे, ये मेरा जो माँ का भाई था उनके साथ मिलके वो किस तरह की वो मेरा बाबा वो उसके नाम कर रहे थे। अब मेरा बाबा का इन चीजों की इल्म ही नहीं था। इसी के अंदर जो है मेरा बेटी की 6 माह हुआ और इसका नाम मेरे अम्मू की डेट हो गया। আমি ঠিক বুঝিনি, আপনি যদি একটু বাংলাতে বলেন। আমার মেয়ের যখন 6 মাস তখন আমার আম্মু এনকে মারা যায়। আপনার মা মারা গেল তাই তো? হ্যাঁ মা মারা যায়। মা মারা যাওয়ার পরে उसके बाद जो है मेरा अब्बू जो है बहुत टेस्ट हो गया, क्योंकि वो एक कि ऐसा हो गया जो मेरा अब्बू की जो है जो भी जितना भी वो कुछ करता था वो सब कुछ छोड़ दिया एक तरफ से, মানে সব ধরনের খারাপ কাজ সে ছেড়ে দিল। है उसे कह रहा था मेरा एक बेटा है, क्योंकि मेरा जो भाई था मैं उसको डॉक्टर भी बोलता, लोग भी बोलता था जो तुम्हारी इस काम की वजह से तुम्हारा एक बेटा जो है उसके दिल में सेट था। तो अम्मी की जो है कैंसर था। ओके। छोड़ने के बाद और जो भी जमीन वगैरह जो भी थे मेरा हस्बैंड को बोल रहा था आप ये तुम संभालो। वो मेरे साथ रिलेशन इस तरह करते थे जैसा 6 मास जैसा आते थे, क्योंकि वो बाहर ही रहता था। ओके। घर पे नहीं आता था, और जब आता था तो उसके साथ मेरे बनता नहीं था,
तो उसके बाद मेरे बाप जब ये छोड़ दिया, छोड़ने के बाद मेरा अब्बू कह रहे थे जे देखो अब मैं जो है 3 बेटा जो है उनका क्या था, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला बाबा आप बाहर जाना चाहते हो तो यहाँ पर मैं किस तरह रहूंगी, और उसके साथ तो मेरा बनता नहीं है, तो मैं किस तरह गेट करूंगी इस चीजों को। तो कह रहा था देखो अब मैं वहाँ पर जाती हूँ, वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया इसलिए मैं जाता हूँ, फिर मैं कुछ महीना के बाद फिर मैं हमारे पास आ जाऊंगा। लेकिन उस टाइम पे मोबाइल इंटरनेट बहुत कम था। ओके। जो घर घरों में मोबाइल इस तरह के नहीं थे। बाबा क्या था तुमसे मैं जो है फोन में राब्ता करते रहूंगी और ज्यादा 6-7 महीने के बाद फिर वापस आ जाऊंगा। ये बात मेरा बाबा कह गए, फिर सबसे करके वो बाहर चला गया। यहाँ से मेरी मियाँ जो है अब तो कोई भी नहीं है, अब उसको चाहती को कोई भी नहीं है। तो वो मुझे यही लड़कियां लेके आना, उसको ये करना है और मेरे साथ उसको बात नहीं करना है। और मेरा बेटी जो है वो उसकी बेटी है सब कुछ की बात, लेकिन वो बोलता था मेरी नहीं है। मुझे इस बात की दुख होता था। मैं कहता तो तुम्हारा नहीं है ना, तो तुम उठाते भी नहीं थे उसको, पकड़ते भी नहीं थे भैया। तो मैंने कहा था एक काम करो, जब ये तुम्हारा बेटी नहीं है तो फिर तुम आलादा रहो, मुझे छोड़ दो। आप ही बोलते हैं छेड़ता हूँ। हाँ ओके। और तुम जो है वहाँ पे रहो, मुझे इसकी कोई वो नहीं करना है। तो ये कहने की बात उसकी ये था, जो बाबा ने जो प्रॉपर्टी कुछ मेरे नाम पर भी थी, बांग्ला मेरे नाम पर थी, पैसा भी मेरे नाम पर है, ये चीजों को उसको लेना है। उसको सिर्फ पैसे की हक थे बस, और कुछ भी नहीं थे। ओके। तो ये चीजें करने के बाद इसी तरह करके फिर मैं उसके साथ मैंने कहा देखो अगर तुम्हें अच्छा तरीके से रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो फिर चला जाओ। तो मुझे मारता बहुत मारता था। और मैंने जब मेरे को ये देखा ये काम भी मुझे कर रहा था, जो तू तेरा बाप को वही लफ्ज बोला था उसने, जो तेरे बाप के लिए तू करता था तो मेरे लिए, मैं तो तेरी मियाँ हूँ, मेरे लिए क्यों नहीं करेगा। तो मैंने कहा देखो किस तरह की करूँ, बच्ची छोटी है, किस तरह করুন মানে আপনাকে স্মাগলিং এ জড়াতে চাচ্ছে তাই তো? হ্যাঁ, মানে বলছে যে আপনার বাবার জন্য আপনি করেছেন, সুতরাং আপনি কেন তার জন্য করবেন না? আর আপনি বলছেন যে বাচ্চা তো আমার ছোট, আমি কেন করব? ওকে। तो ये बोलते थे भैया वो घर पे जो है रेगुलर लड़की लेके आता था নিজের ঘরে। लड़की लेके आके शराब पीना है, ये करना वो करना, पुलिस ऑफिसर आता था, ये सब चीजें ये होती थी। मेरा बाबा जो नहीं करती थी मैंने देखता था, मेरा बाबा करता था, लेकिन वो घर पे ऐसा कुछ भी नहीं था, घर पे किसी को भी नहीं लाता था, और वो सब कुछ घर पे। और उसके लिए मुझे ये काम करना पड़ा। और वो जो मुझसे देकर कराता था वो पिस्तल वगैरह मेरे को देकर एडिट कराते थे। পিস্তল দিয়ে কি করতো? वही गुला पार्सल कराता था। মানে আপনাকে দিয়ে পিস্তল পার্সেল করাতো? একটা হচ্ছে 6 পিসের 4 পিসের এরকম প্যাকেট হতা था। ওকে। এটা আপনি পার্সেল করতেন, কোথায় দিতেন? कुहाटेर ভিতরে, इस्लामाबादेर ভিতরে, मार्केट एंड सुपर मार्केट, वहाँ पर मैं लेके जाता था, वहाँ से लोग आता था, वो मुझसे लेके चले जाते थे, वो मुझे पेमेंट कर देता था, बस मैं लेके आ जाता। আপনি জানতেন না যেগুলো কোথায় ব্যবহার হচ্ছে কি কারণে? কিচ্ছু জানতেন না, শুধু আপনার ক্লায়েন্ট দরকার, ক্লায়েন্টের কাছে দিয়ে দিতেন, টাকা দিয়ে দিত। ওকে। তো আপনার হাজবেন্ড কোথা থেকে কালেক্ট করতো এগুলো? कुहाट से। আচ্ছা। तो वहाँ पर ये बनता है कुहाट में, এগুলো তৈরি হয়? হ্যাঁ, ওকে। কুহাটে এগুলো তৈরি হয়। তারপরে হেরোইন স্মাগলিং होती थी। हेरोइन? ओके। हाँ, हेरोइन होती थी। तो ये चीजें मेरे को देकर कराता था। इसी के अंदर 3 साल गुजार जाता है। फिर मेरा एक बेबी रहता है, तो रहता वो बेबी वो जाया खराब कर देता है। ओहो। वो बेबी मुझे खराब कर देता है, वो मुझे इतना मारता है, वो बेबी मेरी खराब हो जाता है। खराब हो जाने के बाद मैंने कहा देखो वो खराब के अंदर वो मेरे साथ जो है वो जाती करता था। तो ये सब कुछ जो है, अब मेरा बाबा भी नहीं आया। বাবা তখন কোথায় ছিল? बाबा यानी कि लंदने, वो 3 साल ছেলের কাছে। हैं। ओके। बाबा भी नहीं आया, 3 साल हो गया। तो फिर उसके बाद बाबा जब मैंने फोन किया, मैंने कहा बाबा ऐसा एक काम करो, अभी तो जो है वो इस तरह की करा। बाबा को मैं सारी बात नहीं बताता था, जो उसकी इतनी सारी क्या बताऊं, क्या उससे मैं कहूँ, और मैं जाऊं कहाँ। तो मैंने बाबा को बोला जो बाबा मुझे आके ना आप ले जाओ। तो बाबा कह रहा था कि वहाँ पर तकलीफ है तुझे? मैंने कहा हाँ वहाँ पर मुझे तकलीफ है, यानी कि यहाँ पर আমার কষ্ট, আমাকে এসে নিয়ে যান। 3 সাল के बाद मेरा बाबा আসলো। তারপর বাবা ওকে বলতেছে যে আমি ওকে নিয়ে যাই, কয়েকদিন থেকে कुछ दिन रह के फिर वो आ जाएगा। ओके। तो उसने बोला अच्छा ठीक है आप लेके जाओ, कुछ दिन के बाद फिर ये आ जाएगा। भैया इन सब चीजों को भैया तैयार किया हुआ है। एयरपोर्ट जाने की उसमें जब मैंने एयरपोर्ट पहुंचा, मेरी बाबा पूछने से पहले ही मेरी बाबा अरेस्ट। প্রিয় শ্রোতা, এই জায়গাটায় আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিতে চাই। আজকে যে জীবনের গল্প এখানে প্রচার করা হচ্ছে সেটার শেষ কোথায় আমরা কেউ জানি না, কিন্তু একটা প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়ে গেছে।
সেটা হচ্ছে একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, সে বড় হলো পাকিস্তানে, এবং পাকিস্তানে যখন সে পাচার হয়েছে তখন তার বয়স খুবই কম ছিল, 1.5 থেকে 2 বা 3 বছর বয়স, এবং যখন সে জানতে পারল তার বাবা একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিল তখন তার বাংলাদেশে ফিরে আসার কোনো সুযোগ ছিল না, এবং 1 বছর যাবৎ সে এখন বাংলাদেশে। তার বয়স 40-এর ওপর। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, এখানে অনেকেই বলতে পারেন যে 71 সালে যুদ্ধ হয়েছে, এবং তাহলে পরবর্তীতে 71-এর বয়স অনুসারেই তো আমরা বলতে পারি যে স্বাধীনতার প্রায় 43 বছর বয়স চলছে, তাহলে তার বয়স কিভাবে 40 বা 41-42 বছর হয়। এই ঘটনাটি কিন্তু প্রিয় শ্রোতা 71 সালে যুদ্ধ হবার সময়ের পরবর্তী সময়ের ঘটনা, যেটা ঘটেছে 73 কিংবা 74 সালে। কারণ ওই সময়েও কিন্তু যে রাজাকারকে মেরে ফেলেছিল তার বাবা, সেই রাজাকারের স্ত্রী এবং সন্তান বিহারীরা কিন্তু বাংলাদেশে ছিলেন, এবং তিনি যাওয়া আসার উপরেই ছিলেন, কিছুদিন বাংলাদেশে কিছুদিন পাকিস্তানে। পরবর্তীতে ওই বিহারী রাজাকারের স্ত্রী মানুষ পাচার করার সময় একটা সময় গিয়ে তিনি ইন্ডিয়ান বর্ডারে গুলিবিদ্ধ হন, এবং সেই সময়টা থেকে তিনি পাকিস্তানে পার্মানেন্টলি থেকে যান। এবং এই ভদ্রমহিলা যিনি আজকে জীবনের গল্প বলছেন, কিরণ হাজরা, তার ভাষ্য অনুযায়ী তাকে পরবর্তীতে এই ভদ্রমহিলা বলেছিল সে কুমিল্লার ক্যান্টনমেন্টের কোন একটি জায়গাটা থেকে খেলাধুলা করছিলেন, ওই জায়গাটায় থেকে তাকে চুরি করা হয়েছিল, এবং তিনি 40টা বছর পাকিস্তানে কাটানোর পর এখন বছরখানেক যাবৎ তিনি বাংলাদেশে ঢাকার যাত্রাবাড়িতে আছেন। প্রসঙ্গত জেনে রাখা ভালো যে এই মহিলার কোনো কিছুর অভাব ছিল না, সবকিছু ছিল অর্থ, প্রপার্টি। আপনারা জীবনের এখন পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পেরেছেন। জীবনের এই পর্যায়ে এসে সে কেন বাংলাদেশে এইভাবে? टारगेट इसलिए किया हुआ है क्योंकि मेरी बाप ने जब उनको मारा है तो मेरा पापा जो जहाँ पर जाता था वहाँ से जब ये हुआ तो मेरे बाबा की यानी कि पूछ के वो वहाँ तक गया। किस तरह की गया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने ये बात कहा है जो है तुम्हारा बाबा का टारगेट में करता था, जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ मैं पहुंचती थी। কোথায় মেরেছিল আপনার বাবা ওনাকে, মানে ওনার হাজবেন্ডকে, রাজাকারকে কোথায় মেরেছিল? মিরপুরে মেরেছিল। আর আপনাকে পাচার করেছিল কুমিল্লা থেকে? কুমিল্লা থেকে, মানে কুমিল্লা পর্যন্ত গিয়েছিল। জি। ওনার যে আরেক ছেলে ছিল, ওনার বয়স তখন কত ছিল যখন আপনাকে পাচার করা হয়? বড় ছিল। কয় ছেলে ছিল ওনার? यानी कि 2 लड़का था उनका। ওই ছেলের সাথে কি আপনার কথা বলার সুযোগ হয়েছে? एक लड़का को तो मैंने देखा था वहाँ पर भी, वो आप जैसा कि पाठीबाजी जानते हो, जो पाठी होती है, पार्टी होटिस पार्टी, वहाँ पर 2-3 पाठी है जो वो पाठी में यानी कि काम करता है। जैसे कि आपके यहाँ पर जो 2 पाठी होता है ना, जैसा মানে রাজনৈতিক দল করে, পলিটিক্যাল পার্টি করে। हाँ हाँ या ওকে। उसमें जो है वो एक लड़का जो है उनका मर गया था, और एक लड़का से मैंने बात किया हुआ था उस दौरान, तो वो भी बहुत उम्र था उसकी जब मैंने बात किया था। তো ওনার কোনো মেমোরি নেই? উনি কোনো কিছু বলতে পারেননি আপনার সম্পর্কে যে কখন নিয়ে আসা হলো, কিভাবে নিয়ে আসা হলো? नहीं, उनसे मैंने भाई अच्छा कुछ पूछा भी नहीं था जो आपको पता है क्या नहीं है, ऐसा ही मैंने बात किया था। जो गुलाबी आंटी ने मुझे ये बताया था जी, ये मेरा 2 बेटा था, एक बेटा की उनके डेथ हो गया और ये एक बेटा है, मेरे को खुदा ने सजा दे दिया, इस तरह की नहीं। এই মারা গিয়েছিল কিভাবে ওনার আরেক ছেলে? पार्टी में, ওই রাজনৈতিক দলের পার্টি করতে গিয়ে মারা গিয়েছিল। ওকে। প্রিয় শ্রোতা, আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন যে কতটা মিস্ট্রি হতে পারে একটা জীবনের গল্প। আপনার বাবার সম্পর্কে আর কোনো কিছু সে বলতে পারেনি? না। উনি আর্মিতে ছিলেন এতটুকু বলতে পেরেছে। ওকে। উনি জানলেন কিভাবে যে আপনার বাবাই হচ্ছে ওনার হাজবেন্ডের খুনি? क्योंकि उनके सामने यानी कि वो मारा था। কিভাবে মেরেছে? ये यानी कि गुली किया था ওনার সামনেই। हाँ। তো পরবর্তীতে কিভাবে ও আপনার বাবা সম্পর্কে খোঁজ খবর রেখেছে? फिर उसके बाद जो है उसको ये टारगेट है, उनके जो मेरा जो 2 भाई था उस टाइम पे, तो उनके ये टारगेट था जो भाई को लेके जाएगा, लेकिन मेरा भाई तो बड़ा था, वो बड़ा भाई को तो लेके नहीं जा सकता था। আপনার আরো 2টো ভাই ছিল হ্যাঁ। ওনার কথা মতে? হ্যাঁ। আচ্ছা, না, আমার কথা হচ্ছে যে যে রাজাকারকে মেরে ফেলা হলো তার ওয়াইফ তো আপনাকে পাচার করেছে, Yeah. তো উনি আপনার বাবা সম্পর্কে ডিটেল জানলেন কিভাবে? উনি কিভাবে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলেন? এটা কি আপনাকে আগে জিজ্ঞেস नहीं করেছিলেন? भैया, ये तो मुझे नहीं बताया, मैंने पूछा भी नहीं है उनसे। उस वक्त मेरे को इतना ख्याल भी नहीं था, सिर्फ मैंने इतना ही उनसे पूछा था आप मुझे आंटी किस लिए आप मुझे लेके आए हो यहाँ पर, और बाप का जो है ठीक है मेरे बाप ने मार दिया आपका, मैं नहीं जानती हूँ राजाकार किससे बोलता है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन अपने दुश्मनी जो मेरे साथ क्यों किया? तो उसने बोला बेटा मुझे यही था जो मेरा बेटा मेरा हस्बैंड तुम्हारे बाप ने मारा है, और मुझे यही था जो उनकी वाला मैं लेके चला जाऊं, फिर उनको कैसा लगेगा, और मैं उनको मार दूं, यही उनका था। और उसने ये बोला था जहाँ जहाँ तुम्हारे बाप जाता था, जहाँ तुम्हारा फैमिली जाता था, मैं वहाँ ही पीछा करता था। তার মানে কোনো না কোনো ভাবে সে এই हाँ, খবরগুলো उनके বের लोग করতো। था, यही बोला। কত তারিখে মেরে ফেলেছিল এটা কি উনি বলেছিলেন আপনাকে? नहीं भैया, ये भी मुझे नहीं, আপনাকে পাচার করার পরে ওরা কতদিন যাবত বাংলাদেশে ছিল? यानी कि आता रहता जाता था। হ্যাঁ। तो इनमें से वो
35 यानी कि जो लड़की है उसने लेके गया, जो उसने मुझे खुद बताया, जो बेटा मैंने बहुत गुनाह किया है, लड़के लेके गया। और उनसे 10% जो है लड़का भी था, बच्चे को ज्यादा लेके जाता था वो, हर किसी के बच्चे को लेके जाता, बच्चे में पैसा ज्यादा मिलता था उसको। तो ये बोलता था ये काम मैंने बहुत साल किया। इंडिया की बॉर्डर जब बंद हो गया फिर उसको गोली लगा था ये काम करते हुए, फिर उसने छोड़ दिया। ওকে, আমরা আপনার গল্প থেকে আবারও ফিরতে চাই। लेकिन वो मेरा बाबा से अक्सर ही मिलता था, मेरा बाबा से आता था, पैसा लेके जाता था, मेरा बाबा उसको बहुत हेल्प करता था, कहता था वो गरीब है, वो बहुत हेल्प करता था। ওকে, আপনার বাবারই প্রতিবেশী ছিলেন? यानी कि प्रतिवेशी मेरे बाबा जो है था वो तो सिंधी था, मेरे बाबा तो बंगालीस नहीं था। তাহলে আপনার বাবার সাথে ওনার সম্পর্ক হলো কিভাবে? वो वहाँ पर लोग बोले ना आपको, बहुत सारे बंगाली वहाँ पर है, बहुत, अभी भी बहुत बंगाली है। ওকে, ভদ্রমহিলা তো বিহারি ছিলেন, তো আপনার বাবার সাথে ওনার পরিচয় হলো কিভাবে? जहाँ पर मेरा बाबा का घर थे ना, वहाँ पर बिहारी लोगों को वहाँ पर जगह दिया हुआ है, ये आप पता कर सकते हो फोन करके, पंजाब में वहाँ पर बहुत सारा यानी कि बिहारी अभी भी है। ওকে, আমরা আপনার কাছে ফিরি আবার। আপনি যেখান থেকে ছিলেন যে আপনার বাবা আপনাকে নিয়ে লন্ডনে যাবে, ঠিক এই মুহূর্তে এয়ারপোর্টে আপনার বাবা অ্যারেস্ট হলো, তারপর? मेरे बाबा जो है जाने से पहले देखे कि मेरे बाबा को बस अरेस्ट, बाबा के साथ मैं भी थी, मेरे बच्चे भी है, और भी है। जब मेरा बाबा अरेस्ट हुआ तो पूछा गया है मेरे बाबा से, वो मीडिया लोग सब लोग यानी कि इकट्ठा हो गया, और मेरे बाबा को बहुत सारे लोग यानी कि बहुत मीडिया लोग भी इज्जत करता था उसे। उसका नाम अभी भी है, आप फोन करोगे ना अभी भी आबिद सेठ के नाम आपको बताएगा, आबिद सेठ है। तो मेरे बाबा वहाँ पर सब लोग, आबिद सेठ जो है गिरफ्तार हुआ, क्यों हुआ, ऐसे करके मेरे बाबा को जो है मेरे सामने 4-5 यानी कि बंदा जो है उसको यूं गाड़ी में फेंका, मेरे को बैठा के लेके गया। जाने के बाद यानी कि 3-4 घंटा यानी कि यहीं पर इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट लेके जाएंगे उसको, वहाँ पर और मेरा बाबा की अटैक हो गया। अटैक इस तरह हुआ, मेरा बाबा बात वगैरह कुछ भी नहीं कर सक रहे थे, हार्ट अटैक हो जाए। हाँ, अटैक हुआ। तो मैंने वहाँ पर ये बोला, मेरे बाबा ने एक लफ्ज सिर्फ बोला था, जो मेरी जिंदगी में बस यही गलती है जो सलीम के पास तुझे शादी दिया है। ওই সময়টাতে শুধু একটা কথাই বলেছিলেন? मेरे बाबा यही बोला था। फिर मेरे बाबा को वहाँ पर जब मेरे बाबा इस तरह करके डॉक्टर के पास यानी कि 3 दिन वहाँ पर था, फिर मेरा बाबा डेथ हो गया। ओहो, जब डेथ हो गया पूरा यानी कि पाकिस्तान आप फोन करो, पूरा पाकिस्तान में आपको बताएगा, खबर में बताएगा, सब जगह में मेरे बाबा के नाम था। मेरे बाबा को बहुत सारे लोग ने जानाजा दिया है। यहाँ पर जानाजा दे के फिर मेरे बाबा को लंदन, मेरा जो भाई थे, एक भाई मेरा आया, तब मैंने एक भाई और देखा है, इमरान भैया को। फिर मेरा इमरान भैया आके उसने बोला मेरा बाबा को यहाँ पर जानाजा हुआ, सब लोग ने जानाजा दिया, फिर उसको लेके गया। उसने बोला मेरा बाबा को यहाँ पर नहीं करेंगे, फिर वो लंदन में लेके गया। मेरे साथ उनका इतनी बात हुआ जो भैया मैं क्या करूं, तो उसने बोला बेटा अभी तुम यहाँ पर रहो, तो मैंने कहा तुम मुझे भी मार देगा, तो कह रहा था नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें बाद में लेके जाऊंगा। उसने मुझे इतना बात कहा, फिर मैं वहाँ पर रहते गया। आप तो उसके साथ जो है मैं बातें नहीं कर सकती हूँ, जो मेरा बाबा के साथ ऐसा क्यों करो। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा बेटी जो है, अब वो मेरे बेटी को मुझे यहाँ पे हुआ जो मेरा बेटी को नहीं दे रहा है मुझे, तो मैंने कहा क्यों नहीं देना है मेरी बेटी को, पालेगा कौन है उसको। तो कह रहा था उसका जो बाबा है, फिर उसका जो भाई है, वहाँ पर भाई की वाइफ है, कह रहा था वो पालेगी। मैंने कहा मेरा बेटी मैं पालूंगी, वो क्या पालेगा। तो कह रहा था तेरा बेटी अगर तू उसकी जान चाहता है तो फिर मेरा बेटी को जो है मुझे दे दे। मैंने कहा अभी तुम्हारी बेटी हुआ, इतने दिन से तुम्हारी बेटी नहीं था, तभी कैसा तुम्हारी बेटी हुआ। ये कह के भैया वहाँ पर जो है वो बेटी भी मुझसे लेके गया, और फिर मैं वहाँ पर रहते जा रही हूँ। रहते जाने उसका जो है मेरा बाबा का जितना भी वो भैंस वगैरह जो थे, आस्ता आस्ता करके वो सब बेचते गया। इसका लेकिन टाइम भी जा रहा है। फिर उसके बाद जो है 4.5 साल के बाद फिर उसने मेरे को बोला मैं यहाँ से जो है ना कराची शिफ्ट हो रहा हूँ। तो मैंने कहा देखो मैं कराची नहीं जाना है, मुझे मरना है तो मेरा बाबा का यहीं मरना है, कराची आपका जाना है तो आप जाओ, क्योंकि वहाँ पर तो मेरा कोई भी नहीं है। यहाँ पर तो चलो जो मेरा मामू वगैरह 1-2 है, यहाँ पर सब लोग मुझे जानते हैं, पिंडी के सब लोग मुझे जानते हैं। तो मैंने छोटा से बड़ा यहाँ पर हुआ, तो मुझे वहाँ पर नहीं जाना है। कह रहा नहीं जाएगा, मैंने कहा नहीं। कहता फिर बेटी तुझे नहीं मिलेगी। मैंने कहा बेटी कैसा नहीं मिली, 5 साल हो गए मैंने उसको, तुम्हारे पास तो मुझे बेटी रखना नहीं है। मैं जो है अपना बेटी को जो हॉस्टल पे रखूंगा, मैं यहाँ पर भी रख के जो है ये नहीं पढ़ाऊंगी, और जो यहाँ पर मैं पढ़ाऊंगी तो तुम तो अपने धंधा में लगा दोगे उसको, तो मैं हॉस्टल में उसको रखूंगी जब उसका 5 साल पूरा होगा। ये कह के जो है मेरी बेटी को मेरे पास रहने की देते ही नहीं थे। अभी बेटी को वो साथ रखने लगा मेरे पास, जब उसको खिलाने की टाइम होता है ये लेके आया, नहीं तो बाहर की चीजें यानी उसी के साथ अब रखना शुरू किया। तो इसी तरह करके भैया 5 साल गुजार जाता है। तब मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो इसको तो अभी स्कूल में दाखिला देना है। तो वहाँ पर एक ही स्कूल था, तो मैंने कहा उसके स्कूल में दाखिला देना है। कहने मेरा बेटी को जो है ना मैं स्कूल में दाखिला नहीं दूंगा,
मेरा बेटे को मैं हॉस्टल में रह के पढ़ाऊंगा। ये करने के बाद जो है बहुत लड़ाई हुआ उसके साथ, तो वो मुझसे बेटी लेके गया हॉस्टल में दाखिला कराया। जाने के बाद अभी घर पे जो है एक एक चीज भाई वो बेचना शुरू किया, क्योंकि अब तो मेरा यहाँ पर बाबा वगैरह कोई भी नहीं, और जितने प्रॉपर्टी बाबा का था वो सब उसने किस तरह से किया है मुझे नहीं मालूम है। वो भी मेरा एक मामा के साथ मिल के किया। तो जब मैंने कहा चलो जैसा भी हुआ, तो घर पे आता था वो लड़की और उसको लड़की की धांधा कभी भी नहीं गया। इसी के बीच में जितना साल के लड़की की धांधा उससे खत्म नहीं हुआ। इसी तरह मेरी जिंदगी गुजारे और मैं कुछ भी नहीं। इसी के अंदर बोल रहे क्या है, ये देख तुझे जो है ना वहाँ पर भेजना है। मैंने कहा कहाँ पर भेजना है? कह रहा तेरे को ना दुबई भेजना है। मैंने कहा मैं नहीं दुबई जाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मैं जब दुबई में जाऊंगी तो तुम मुझे क्या दोगे, और देखे मेरा बाबा की तरह मुझे अरेस्ट करा दोगे, जेल में भर के रख दोगे, मैं कभी भी निकाल नहीं सकूंगी। उसकी वजह से भैया उसने मुझे इतना मारा। आग जो है सिगरेट जो पीता था उसके निशान मेरे हाथ में भी है, मेरे गाल में भी है। यही मुझे सिगरेट से जलाता था। तो कि मेरे काम में मैंने कहा नहीं मैं मर जाऊंगी इस तरह, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं जाऊंगी। इस तरह करके 6 साल गुजर गया। 6 साल के अंदर उसने 2 लड़की लेके आया, और इस बीच में मैं ऐसा काम कर रहा था जो काम रिजल्ट में कंटिन्यूज में कर रहा था। ओके 2 लड़के लेके आया। तो मैंने कहा आप इसको क्यों घर पे क्यों लेके, आप जो बाहर जाते हो तो जाते ही हो, तब घर पे भी क्यों लेके आए हो? घर पे तो कम से कम ये नहीं करो। तो कह रहा था तुझे क्या हो रहा है, मैंने तो तुझे राखाल रखा है। तो मैंने कहा राखाल तो तुम मेरा बाप का था। तो ये कहने पर उसने मुझे मारना है। मरने के बाद मैंने कहा जाओ भैया। उसने रात रोका है, अल्लाह के काम था। उसने इतना 4 पुलिस वाला था, 4 पुलिस वाला आया है, और उसमें शराब जो है ना वहाँ पे कूलर भर के शराब पीता है। 2 लड़की थी, वो 2 लड़की जो है ना उन लोग ने खराब भी किया, उनके साथ फिजिकल किया। वो 2 लड़की किस तरह से भाई मरा समझ में नहीं आया मेरे घर पे ही। जब घर पे मर गया है तो सुबह हो गया, इन लोग निकाल रहे ना, पुलिस वाला बाहर निकाल रहा है ना ये निकाल रहा है, कोई भी नहीं निकाल रहा है। तो मैंने चौकीदार था, मैंने उसको बोला है काका जाके देखो इन लोग तुम्हारा सांप क्यों नहीं निकाल रहा है, जाके उनको बोलो दिन हो गया निकाले, अभी तो बाहर आए। तो मेरे को कह रहा था बेटा रहने दे। मैंने कहा नहीं देखो 12 से ऊपर बज गया, जाके देखो क्या है। तो वो ऊपर गया, वो ऊपर जाके लॉक कर रहा था, देखे नहीं खोला है। कह रहा था अमेरिका के बोल रहा है बेटा वो तो बंद है। तो हमारे वहाँ पर इसी तरह ही वो खिकरिया होती है, उसको पार्स कर सकते। ओके तो मैंने कहा जाओ जाके जो ना उसको पार्स करके फिर उसका अंदर जाके फिर कुंडी खोलो। भैया जब खोला है तो जाके देखा है एक तरफ पड़ा है। सेलिम को भी पता नहीं है, जो 4 पुलिस वाला थे उनको भी कुछ पता नहीं था, खुशी ही नहीं था। ओके और वो 2 लड़कियां जो है वो मर गया है। तो ये जब उनको हुआ फिर आके मुझे बोला कि आप जाके देखो इस तरह हुआ है। तो मैंने गया जाके देखा है भैया उस तरह ही हुआ है। फिर अंदर गया, अंदर जाके उनको पानी वानी दिया हुआ। मैंने समझा लड़के लोग बेहोश हो गया है। तो देखा नहीं लड़के जो है ना पानी वानी दिया कुछ भी नहीं, और वो मीडिंग इनकी ब्लड भरा हुआ है। तो मैंने उनको जो है ना उठा मैंने कहा होश में आओ देखो तुमने क्या किया। लड़की जो है बातें नहीं कर रहा है और उन लोग तो बेहोश होके सो रहा पूरा है। फिर आके मैंने कहा देखो ऐसा बातें, अब क्या करना है। मेरे को बोला तू जा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा हुआ है, देखो देख लड़की जाते है और बच्चियां है, तुम लोग को उम्र देखो 4 बंदा तुम हो, इस तरह के इंसान के साथ करता है। इसी कारण उठ के देखा जब बाकी लड़कियां मर गया है। जब मर गया है वो मुझे उठ के बोल रहा है ऐसा कर तू किसी को भी नहीं बताना। मैंने कहा क्यों नहीं बताऊंगी, मैं तो बताऊंगी तुमने ऐसा किया है। वो तुम्हारे जो पुलिस वाला है ना ये सब मिलके ऐसा किया, मैं बताऊंगी। तो मेरे को बोला तू बताएगी। मैंने कहा हाँ मैं बताऊंगी। कह रहा बता। तो मैंने कहा यहाँ पर तो नहीं बताऊंगी, ये तो पुलिस वाला है तुम्हारे जो है, आप देखो फोन करती हूँ कैसा आता है फिर कैसा उठा के ले जाता है। वो ये समझा है जो ऐसा है उनका ही हुआ, वो बेहोश हो गया। उनको उसको पता ही नहीं तुझे हकीकत में वो मर गया। जो भी है टाइम गुजार गया, पुलिस वाला आया, पूरा घर बार सब भर गया। पुलिस वाला आके उनको उठा के उनको लेके गया। जब लेके गया अब मेरे को और पुलिस वाला बोल रहा है तेरी बीवी को जो है बोल दे बयान ना दे। मैं कहने में बयान दूंगी क्योंकि इन चीजों की सब खत्मा करना है। आज तुम मेरे साथ ऐसा किया, कल और लड़की के साथ करोगे, ऐसा तो होते रहेगा। पुलिस वाला मिलके कर रहे हो। तो वो कहाँ की कौन सी लड़की कहाँ से ले, उनको होटल मैरान से लेके आई थी। फिर जाके जो है ना मैंने कहा मैं बयान दूंगी। भैया मेरे को लेके गया थाना पे पूरा इसी के लोग था, सब लोग जो है इसी के, जो मैंने बयान दिया सब इनके लोग था। मुझे जो है उनका कुछ भी नहीं हुआ। अब मेरे को कह रही है जज जो है वो भी इनकी खुरेदा हुआ है। अब वो चाह रहा है उनका जो 4 पुलिस वाला थे वो 4 पुलिस वाला की किसी के साथ उनकी दुश्मनी था।
अब वो कह रहे वहाँ पर एक थी जो आप फिजिकल रिलेशन जब वहाँ पर करते हो तो वहाँ पर अगर केस देते कोई लड़की तो उसकी सजा मौत हो जाती है, रेप की केस बन जाता है। ओके। हाँ, तो वो कह रही है तुम्हारी बीवी को देके जो है ना सेलिम, तुम्हारी बीवी को देके ना इस प्रॉब्लम में इनको फंसा दो, मेरी ये काम करा दो। अब मैंने कहा मैं कानून के पास गया हूँ, वहाँ पर भी जो है वो नहीं मिल रहा है मुझे चटनी मिला, क्योंकि मेरा बाबा तो नहीं है यहाँ पे। ये मामू लोग जो है वो भी उनके साथ मिला हुआ है। अब मुझे सेट नहीं मिल रही है तो मैं क्या करूँ। उन लोग मुझे बोला भाई तुम ये बोलोगे जे इन लोग ने मुझे उठा के लेके गया था तो उनकी 17 बंदा इनके मुझे फंसाना है मेरी यानी कि जबान में, इनकी बयान में। और ये जो केस जो लड़की जो मर गया है उनका माँ बाबा सब आके, तो वहाँ पर भी वो उन लड़की ये काम जो कर रहा है उसके लिए भी वो, लेकिन उसको मारने की तो कोई वो नहीं है। फिर उसके बाद जो भैया मेरे को वहाँ पर लेके गया, लेके जान के अब तो मुझे घर नहीं लेके, जो वो मुझे बोल रहा है मैं वही काम ही कर रहा हूँ। जो उन लोग ने मेरी इज्जत लुटा था, बल्कि उनको मैंने देखा तक नहीं था, वो था पंजाबी। जब मुझे जज के पास लेके गया वो उनको भी बैठाया हुआ है। अब मैं एक को भी नहीं पहचानती हूँ। तो एक बंदा ने उसको क्या किया, वो इंस्पेक्टर नजीर था, उसने क्या किया, उसने मुझे बोला बेटा तुम्हारे को एक बात बोलो। मैंने कहा हाँ बोले। कह तुम्हारे बाप का जो है जितना भी कहानी है सब मुझे मालूम है, ठीक है, लेकिन तुम जो है ये जो बैठा हुआ है 17 बंदा है इनको नहीं फंसाओ। ये जो तुम रेप केस में फंसाओगे तो ये सजा मौत हो जाएगा इनकी। अगर मौत नहीं भी होगा उम्र के तो लाजमी होगा। अगर तुम्हारी कुछ हो जाता है, तुम अगर मर जाते हो एक अच्छा काम करके, तो देखो तुम ऐसा नहीं करो। तो बोला तुम जो कुछ भी है तुम वहाँ पर जाके तुम सच बताना, देखो सच्चे की तुम्हें फल मिलेगा। तो वह वहाँ पर फिर मेरे को लेके गया। जब लेके गया मैंने कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में मैं गया हूँ। जाने के बाद 6 बंदा उनकी जेल ही हो गया, उन जेल से आ रहा है। उनमें से मुझे एक बंदा ने उठ के बोल रहा है आपके नाम किरण है। मैंने कहा जी मेरे नाम किरण है। कह रहा है आप बेटा आपने हमारे को फंसाया है, आपने कितना पैसा की खातिर फंसाया, आप जितना पैसा की खातिर आपने मुझे फंसाया है इससे ज्यादा पैसा मैं दूंगा, लेकिन आप सच बोलो। तो मैंने बोला ठीक है। और वो भी बात मैंने याद कर, जिंदगी में तो खराबी मैंने किया ही, अच्छा तो कुछ भी नहीं किया। जब मैंने ये काम किया तो खराब ही है, तो मैंने ये काम अच्छा करके देखता हूँ। अगर मुझे मार देते हैं तो ठीक है। जब मैंने जज के पास भैया सामने लेके गया, वहाँ पर मुझे जज ने बैठाया। बैठाने के बाद मुझे टाइम दिया 10 मिनट। टाइम देने के बाद बोला बेटा जो भी आपको कहना है अब सच कहना। तो मैंने उसको बोला ठीक है। भैया वहाँ पर जब मैंने उनको लेके गया, मैंने जज को जो है सारी बातें मैंने उनको, और वो एक बात ये थी जज ने मुझे देख कर जो है वो मुझे एक्टिट कर लिया था ये केस झूठा है। तो वहाँ पर जाके सारी बात मैंने बताने के बाद जो है जज ने जो है उनको रिहाई दे दिया। तो मैंने जज को सब यही बोला था आप मुझे जेल कर देना, आप मुझे उनके हाथ में नहीं देना, मुझे जेल कर देना। लेकिन उसने मुझे जेल नहीं किया था भैया, उसने मुझे मेरे हस्बैंड के साथ मुझे दे दिया। जब मुझे मेरे हस्बैंड के साथ दे दिया तो उसने इस वक्त मुझे कुछ भी नहीं बोला, इज्जत के साथ मुझे घर लेके गया। जब घर लेके गया रात जब हुआ है तब उसने मुझसे पूछा है तूने ये बयान क्यों दिया। मैंने कहा देखो ये बयान मैंने इसलिए दिया हूँ, ये झूठ था और इसकी वजह से अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम मुझे मार दो, किंतु बंद तो मैं तुम्हें कर रहा था। 2 लड़की की जब यहाँ पर केस था ये तुमने मिठा दिया, किस तरह जब है मिठाया वो मेरी समझ में नहीं आई, आज तक नहीं आई। मैंने कहा मिठा दे, अगर तुम मुझे अभी मार देना चाहते हो तब मुझे मार दो, लेकिन कल मैं तुम्हारे खिलाफ यही बयान दूंगा। तो क्या तुम यही बयान दोगे। मैंने कहा हाँ मैं यही बयान दूंगी। तुम्हारा बयान बदलेगा नहीं। मैंने कहा नहीं बदलेगा, अगर मैं बाप का हुआ तो मैं यही बयान दूंगी। फिर ये बात उसे कहने पे उस दिन भी कुछ नहीं बोला, उसके बाद के दिन भी मुझे कुछ नहीं बोला। तीसरा दिन आके मुझे कह रहा था आप मेरे साथ घूमने चलोगे। मैंने कहा मुझे घूमने नहीं जाना, तुम मेरे को बेटी के साथ एक बार मिला के, कब बेटी के पास जाओगे। मैंने कहा हाँ मेरा बेटी के पास जाऊंगी, मेरे बेटी को देखने के लिए मैं जाना है। तो मुझे वो बेटी के पास लेके गया। जब लेके गया वो हॉस्टल तो थे, तो इस तरह के बैठने की जगह होता था और उन लोग लाके मिलाते थे। तो वहाँ पर मैंने बैठा हुआ था तो मुझे एक आया जो है उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक ला के दिया। वो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद भैया मुझे कुछ भी नहीं मालूम थे। পরে কি হলো? তারপরে ভাইয়া ওখানে আমাকে একটা মহিলা কোল্ড ড্রিঙ্ক এনে দেয়। ওটা খাওয়ার পর আপনি ঘুমিয়ে গেলেন? হ্যাঁ, তারপর আর আমার কিছু মনে নাই। কিন্তু ওই দৌরান যে আমি প্রেগনেন্ট থাকি। ওই সময়টাতে আপনি প্রেগনেন্ট থাকেন? হ্যাঁ প্রেগনেন্ট থাকি। যখন আমি হুঁশ পাই তখন আমি দেখি আমি একটা হাসপাতালে, যে অফিসারটা আমাকে বাঁচাইছে ওর নাম হচ্ছে কর্নেল মেহমুদ, ও আর্মিতে ছিলেন। কর্নেল মেহমুদ? হ্যাঁ মেহমুদ, পাকিস্তানি আর্মি। সে তো কর্নেল মেহমুদ বাঁচালো মানে কোথায় কি ঘটনা ঘটেছিল? হ্যাঁ সে আমাকে পেয়েছে কচুর একটা বর্ডার
যে ইন্ডিয়ার যে বর্ডার আর পাকিস্তানি বর্ডার, ওই বর্ডার নাম হচ্ছে কসুর। ওই বর্ডারটার সাথে একটা নদী আছে, নদীর কিনারে আমাকে পেয়েছে। নদীর কিনারে আপনি ওখানে ছিলেন? হ্যাঁ, ওখানে আমাকে বেহুশি পেয়েছে ভাই। ওকে। তখন আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে, ওগুলো আমার কিছু মনে থাকে না, ওটা কি পরাপতি তো আমাকে বলে আর কি। যখন আমি জ্ঞান ফিরি, ইনফ্যাক্ট তখন আমি দেখি যে আমি হাসপাতালে। তাই আমি বলি হাসপাতালে কিভাবে, বলতেছে আমি কোথায়, তা বলতেছে এটা তো এনেকে তুমি হাসপাতালে। আমি বলতেছে হাসপাতালে এটা কোন জায়গা, তো বলতেছে এটা কসুর এলাকা। তো কসুর এলাকাকে আমি আবার চিনি, ওইখানে আমি মাল পার্সেল করতাম, চেনা আছে। তা আমি বলতেছি আমি কসুর বর্ডারে, তা বলতেছে হ্যাঁ তুমি কি ইন্ডিয়ান পার্সেল। আমি বলতেছি নামটা ইন্ডিয়ান পার্সেল না, আমি এখানে কিভাবে আসলাম। তখন ও ফোন করে কর্নেল মোহাম্মদ ভাইকে নাকি এনে, তার কাছে আমি জিজ্ঞাসা করি যে ভাই আমি এখানে কেন, কিভাবে। ওরা আমাকে মনে করছে যে আমি ইন্ডিয়ান কোন যে এজেন্ট যেটাকে বলে। তো আমাকে ও জিজ্ঞাসা করে, তা আমি বলছি না ভাইয়া আমি ওখানকার এজেন্ট না, আমি তো এরকম, আমার বাড়ি তো ইসলামাবাদে, আর আমার হাজবেন্ডের নাম যে এটা। তো বলছে তুমি এইভাবে কেন, আর তুমি জানো যে তুমি এখানে কয়দিন ধরে আসছো। তাই আমি বলতেছি আমি কিছু বলতে পারি না। আর তখন আমার অবস্থা অনেক খারাপ ছিল, আমার হাতে পায়ে আমার অনেক দাগ আছে, আমার পাও ভাঙ্গা, আমার হাতও ভাঙ্গা। তারপর আমার এই মুখে যে জ্বালাইছে না, ওইটাও তখন পানি এসে অনেক খারাপ হয়ে গেছিল মুখটা হাত অনেক, সিগারেটের সব নিশান ছিল আমার পুরো গায়ে, এখনো আছে। তাই ওইগুলা দেখা আমাকে বলছে তুমি এখানে কয়দিন, আমি বলতে ভাই আমি বলতে পারি না আমি এখানে কয়দিন ধরে আসছি। তো এরকম বলতেছে তুমি এখানে কয় মাস সেটা জানো, কয়দিন বলতেছে এখানে কয় মাস তাই বলো। তাই বলতেছি স্যার আমি এখানে কয় মাস সেটা ভাই আমি কিভাবে জানবো, আমার কিছুই মনে নাই। এতটুকু আমার মনে আছে যে যেরকম হয়েছে আমার সাথে সেটা আমি বলছি। তাই বলছে তুমি জানো তুমি প্রেগনেন্ট, তুমি এটা জানো। বলতেছি না ম্যাম এটাও জানি না। তা বলতে আচ্ছা সে আমাকে ওখান থেকে রিলিজ করে আমাকে বাড়িতে নিয়ে গেল। বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পরে বাড়ি মানে তার বাড়িতে? হ্যাঁ তার বাড়িতে। ডিটেল সেই ঘটনা আমি তাকে বললাম একবারে বাংলাদেশের এই ঘটনা থেকে শুরু করে। হ্যাঁ শুরু করে। ওকে। তো সে আমাকে বললো কি যে তুমি এক কাজ করো, তুমি ভালো হয়ে তারপর আমি তোমাকে নিজে নিয়ে যাবো আর তুমি আমার সাথে কাজ করবা। তা আমি বললাম যে এটা মনে মনে বলতেছি আল্লাহ এর কাছে থেকে আমি কি কাজ করব। শুনছি সে আর্মি, তো আর্মিরা তো কোনো খারাপ কাজ করে না, এটা মনে ধারণা। যাই হোক ওখানে ভাইয়া আমি বললাম ডেলিভারিটাকেও আমাকে ওখানে রাখলো। আমার দেখা ওর ওয়াইফ যে ছিল তাকে দেখে আমাকে নাকি অনেক আদর করতো, আমাকে আমার ঘাও ঘু সব নাকি ধোয়াই দিত সে। আর তাকে আমি রেগুলার এটা বলতাম যে ভাইয়া আমি শুধু ওকে মারতে চাই, যে ও যেন বিচার পায়। আমি এটা করছি কেন আমার বাবা আমার সব কয়, আমিও এটা চাই ও যেন বিচার পায়। আমি বলতেছি এখানে বিচার নাই, শুধু এটাই চাই যে আমার বাবার কাতিল ও আমি যেন বিচার পাই। আমার ভেবে দুটা টুইন্স ভেবে হলো, छेले और की लड़का। तो महमूद भाई की जो है उनकी कोई औलाद नहीं है। जब ट्विंस हमारा बाबू हुआ तो उनकी जो वाइफ है वो बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो मैंने एक बात उनको सोचा है क्या, उसने ये बात मेरे को नहीं बोला, उनके हस्बैंड को बोल रहा है इनका तो 2 बेटा है तो इनको बोलो एक बेटा मुझे दे दे। तो हाँ महमूद भाई कह रहा था देख हम जो है लोग को बचाते मारते नहीं है, और इसका कहानी तूने सुना है, इसका बेटा तेरे को कैसा दे देगा। तो बात मैंने सुना है, सुन के मैंने ये सोचा है जो एक आर्मी में जब इनके पास रहेगा तो मेरा बेटा आर्मी में जाएगा, एक बेटा मैं इनको दे दूं। तो मैंने भाभी को बोला जब भाभी देखे आप फिलहाल जो है मेरे दोनों बेटा को आप पाले, मेरे को अपना घर जब मिल जाएगा तब मैं एक बेटा मैं ले लूंगा। बहुत खुश हुआ। तो महमूद भाई बोला था नहीं कितने ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने कहा भाई अल्लाह ने तो मुझे 2 दिया है, आपके पास रहेगा तो एक इंसान बन सकता है, एक बेबी तो मेरे पास वो है, वो तो है ही नहीं। কোথায় ছিল वो तो वो जो मैंने उसके बाप के पास जो है मुझको तो दिखाया ही नहीं है। जब मैंने वहाँ पर गया था देखने के लिए, जो बाबा কোথাও गुम করে দিয়েছে তাকে, हैं उसके साथ तो मेरी रिलेशन ही नहीं। वो तो ये समझ गया जो मैं मर गया हूँ, क्या वो तो मुझे फेंक के आ गया है ना। ओके ओके। तो फिर उसके बाद जो है महमूद भाई ने बोला मेरा बेबी की जो 3 माह हो गया, 3 माह हो गया, मैंने बेबी को दोनों बेबी को वहाँ पर रखा। महमूद भाई ने मुझे ये बात कहा जे मैं तुम्हारे हाथ में करके दूंगा, तुम उसको जो है ये मारोगे, जो तुम्हारे साथ इतना वो किया है उसको तुम मारोगे। मैंने बोला भाई मैं उसको अपने हाथ में मारूंगा, लेकिन मेरे जिस्म में भाई ऐसा कोई जगह नहीं है जो निशान नहीं है, ऐसा कोई वो मेरे हाथ पे सब टूटा हुआ है। ये जब मैंने उसको बात बोला तो मेरे को लेके आया, 3 महीने के बाद मेरे को लेके आया। जब लेके आए तो वहाँ पर वो घर पर सब लोग मेरे को देख के हैरान, यार वो वहाँ पर क्या बोला है पता है आपको, सब लोगों के पास बोला है ये जो है बांग्लादेश चला गया, किसी लड़का के साथ बांग्लादेश चला गया, यानी मेरी बदनामी वहाँ पर छोड़ दिया उसने। तो जब छोड़ दे वो वहाँ पर नहीं है। जब मैंने वहाँ पर गया तो उन लोग कोई भी मेरे को सब लोग देख के दुनिया के लोग आया मेरे को देखने के लिए, तुझे बांग्लादेश चला गया तेरा माँ बाप मिला है क्या। अब मैंने कहा ये क्या कहानी है,
मैं तो बांग्लादेश नहीं गया हूँ। फिर मेरे को महमूद भाई जो है वो फिर कैंटोनमेंट था वहाँ पर मुझे लेके गया, लेके जाके रूम था वहाँ पर, बोला तुम यहाँ पर आराम से रहो, उसको ढूंढने का मेरा काम है। उसने जगह में जहाँ जहाँ उसका वो काम करता था वो मैंने सब उनको बताया। वो एक एक करके भैया सबको खत्मा किया, जितने भी उनके कैलेंट था सबको वो पकड़ा, उनके साथ मैंने पकड़ाया हूँ कि मुझे हर जगह मालूम था। वहाँ पर जाके मैंने रेट पड़ा, लेकिन वो बता नहीं सकते थे रेट कौन ढाला रहे। वो कह रहा था ये कौन आया। लास्ट में वो जो है पकड़ा गया। আপনার ডান হাতের কোণের নিচেটা কিসের দাগ? इस्तरी जलाया था और इस्तरी पकड़ा था, इस्तरी पे कपड़ा जला दिया था तो इस्तरी पे पकड़ा था। এইটা হচ্ছে আপনার ডান হাতের কোণায় না? ওকে, হ্যাঁ। তারপর पकड़ने के बाद उसको बहुत मारा है। मारने के बाद जो भी इन जहाँ जहाँ काम करता था वो सब जो है, वो जो नहीं भी किया है वो भी उसने कबूल किया। कबूल करने के बाद उसने, लेकिन मेरा बेटी जो है वो भाई उसने कह रहा है बेटी मेरे पास नहीं है। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, बेटी मैंने तुमको दिया है, तुमने क्या किया बेटी की ये बताओ। उसने भैया उसको बिजली की सड़ जो जो उसने मुझे मारा है ना वो चीजें उसको किया, लेकिन उसने बेटी की नहीं बताई। कह रहा बेटी गाँव चला गया उसके दादा के साथ, तेरी गाँव का ठिकाना दे। तो गाँव के उस टाइम पे फोन वगैरह कुछ भी नहीं था इनकी गाँव में। तो बेटी की खबर क्या था, वो बेटी चला गया, वो बेटी की नहीं बता रहा था। फिर जाके मुझे उसने बोला ये तेरी बीवी है, तू कितना लोगों को रखा हुआ है। उसने सब गुना कबूल किया। मैंने उनको आखिरी में इनको बोला हुआ था महमूद भैया को, जो भैया इसको छोड़ दीजिए। तो भैया ने बोला था इसको छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसने इतना गुना किया हुआ है, उसने खुद से कबूल किया हुआ है, इतना लड़की की इज्जत लूटा है, इसने खुद से कबूल किया है, तो इसको नहीं छोड़ सकते। फिर जाके मेरे को दिया हुआ है, मैं रिवॉल्वर चलाना मुझे आती है, 6 गोली भर के मुझे दिया था उसने, बोला था इसका ऊपर चला। मैंने चला नहीं, मैंने ऊपर 6 गोली 6 की मार दिया। मैंने जब ऊपर ऐसा गोली मार दिया फिर मुझे महमूद भाई ने एक थप्पड़ मारा। मेरे को बोला तुम लोग औरत जात हो ना, इसलिए जो है तुम, मैंने कहा भैया ये मेरी जो है बच्चा का बाप है, छोड़ दो। उसने भैया नहीं छोड़ा, उसको वहां मार दिया। क्या हाँ हमारा फौजी की ये टेक्निक है, औरत के ऊपर हाथ उठाना जुलूम है, और उसने तो तुम्हारे साथ इतना कुछ किया है। फिर उसको मार दिया, मारने के बाद उसको डेड बॉडी भी नहीं दिया। वहां से जो है मेरी अब वापस मुझे लेके गया महमूद भाई, क्या अब मुझे बोला है बेटा तुम्हें क्या करना है। तो मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ, बांग्लादेश में मैं जाऊँ, मुझे जाने की बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मेरा पासपोर्ट वगैरह ये सब कुछ है, मैं जाऊँ जो वहाँ पर, वहाँ तो कोई भी मेरे कैलेंस नहीं है, तो मैं किसके पास जाऊँ, किसी को मैं जानती नहीं हूँ, तो ऐसा कौन शहर में जाऊंगा मैं। तो उसने बोला था बेटा मेरे को भी तो पता नहीं है बांग्लादेश में तुम्हारा कौन है कौन नहीं है, तो यहाँ पर तुम्हारा कौन है। तो मैंने कहा यहाँ पर मेरा घर है। आगे भैया देखा है जो इतना भी कुछ था, चलो उसने लिखे गया, जो बाकी बचा है वो भी मेरी जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए बहुत था, लेकिन मेरी बेटी मुझे नहीं मिली। नहीं मिलने के बाद मैंने यहाँ पर एक बेटा मैंने उनको दे दिया। मैंने भाभी को बोला भाभी आपने मेरे ऊपर एहसान किया, क्योंकि अगर आप मुझे नहीं बचाते तो बच्चा तो मुझे नहीं मिलता। और मैं एक ही आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जे आप इससे आर्मी में भर्ती कराओगे, जो भी होगी ये आर्मी होगी। क्या चाहते मैं इसलिए जब मेरी बाबा आर्मी में थी इसलिए, तो मैंने कहा इसको आर्मी बनाओगे, डॉक्टर वॉक्टर कुछ भी नहीं, सिर्फ आर्मी बनाओगे, और इसको इन सब दिलाने के लिए इसको ये चीजों को सिखाओगे। तो उसने बोला था ये बच्चा मुझे लिख के दे दो। मैंने कहा हाँ पेपर लेके आओ, मैं साइन कर देती हूँ। तो महमूद भाई ने बोला नहीं, बोला ये बेटा है, अगर बड़ा होकर इसके पास चला जाएगा जाने दो, लेकिन लिख के नहीं, लिख के क्या करोगे। तो भैया मैंने वो बेटा उनको दिया, देने के बाद जो है मैंने आ गया हूँ। महमूद भाई मुझे खुद देखेगी अपना घर, इसी के अंदर साल खत्म हो गया, ये 2001 पे मैं घर आया हूँ। घर आने के बाद जो है मैं अपना काम कर रहा हूँ। महमूद भाई ने मुझे ये बात बोला बेटा अगर तुम्हें कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन हो, ऐसा काम कर रहा है, तो अगर तुम उसका देना चाहते हो, मैं ऐसा एक ऑफिसर में देखे जाऊंगा, तुम उसके पास इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो उसके नाम था बहादुर अली। वो बहुत ही बहादुर था भैया, छोटा सा लड़का था वो, लेकिन थे वो বাহাদুর। তারপরে ওখানে ভালোভাবে আমার বাড়িতে আমি থাকতেছি করতেছি। তো এরকম করে মনে করেন 4 বছর মতো আমি পুলিশের সাথে ওদের ইনফর্ম দিতে গেছি, কারণ আমার মামা ও যারা বাকি বাচ্চা পুলিশের সোর্স হিসেবে কাজ করেন আপনি, তাই তো? জি। স্মাগলিং তখন ছেড়ে দিলেন? হ্যাঁ, ওটা আমি ওখান থেকে তোবার করছি আর ওটা ছেড়ে দিচ্ছি, কারণ আমার বাবা এসে নিয়ে গেছে। দেওয়ার পরে নাকি পুলিশের ইনফরমেশন আমি কাম করতাম, 4 বছর মতো আমি পুলিশ ইনস্টিটিউটে কাম করছি। করার পরে আমার যে হাজবেন্ডটা, এর সাথে আমার মামিয়া আমাদের গাড়ি ড্রাইভার ছিলেন, তো ভালো ব্যবহার ছিল। আর তখন আমি একে কোনো খারাপ ব্যবহার দেখি নাই, আনা নেওয়া যেখানে যাওয়া হইতো সবকিছু ভালো ব্যবহার সে আমার সাথে করতো। তখন একদিন দেখি একটা ছেলে নিয়ে আসছে, তখন এমনি তার সাথে আমি বেশি কথা বলতাম না, সির্ফ কাজের কথাই বলতাম, তার ফ্যামিলির ব্যাপারে সে ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসা করতাম না কখনো। তো একদিন আমাকে বলে কি সে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে
ও অফিসার বাহাদুর আলী ভাইকে ঘর নিয়ে যেতেছে, তখন আমাকে রাস্তা বলে, ম্যাম একটা কথা বলবো? তো আমি বলতেছি হ্যাঁ বলেন। ওই এখানে ভুল হয়ে গেছে একটা কথা, যে আমার ছেলেটা ছিল তখন ছেলেটা কিন্তু ওর দাদা নিয়ে যায়, ছেলেটাকে আমি নিয়ে আসলাম। কোন দাদা এটা? আমার শ্বশুর, যে আগের শ্বশুর। মানে আপনার যে হাজবেন্ডকে মেরে ফেলা হলো সেই হাজবেন্ড শ্বশুর কি জানতো যে আপনি তাকে মেরে এইভাবে? হ্যাঁ, এটা পুরো খানদান জানে, এখন এখানে নাকি তাদের বাড়িতেও জানে এই ব্যাপারটা, এভাবে মারা হয়েছে। কিছু বলেনি আপনাকে? শ্বশুর অনেক ভালো ছিলেন তিনি, কিন্তু আমার চাচা শ্বশুরা যে ছিলেন তারাও দেখছে যে তাদের এই দোষ, কিন্তু ওটা তো আমি ভাইয়া মারিনি, আমি তো সেই পরিস্থিতির ছিলাম। রাইট, সে নিয়ে গেল আপনার একটা ছেলেকে, দাদা নিয়ে গেল একটা ছেলে ওই মেহমুদের কাছে, কর্নেল মেহমুদের কাছে, কর্নেল মেহমুদ ভাইয়ের কাছে। যখন ওর বয়স 1.5 বছর হয় তখন ওর দাদা ওকে নিয়ে যায়। হ্যাঁ, নিয়ে যাওয়ার পরে তখন আমি খালি থাকি, আর আমার কাছে কেউ থাকে না, মেয়েও কিন্তু আমি পাইনি। আর ওই ছেলেটাও মনে করেন ওখানে, তারপরে মেহমুদ ভাইয়ের কাছে আমার অ্যাকসেপ্ট, তার কাছে তো আমি ছেলে মনে করেন কখনো চাইতে পারবো না। রাইট, কিন্তু সে আমাকে কয়েকবার বলছে, আমি বলছি না ভাইয়া এই কাজ আমি করতে পারবো না। তারপরে ভাইয়া আমি অ্যাপ্লাই করছি, ওখানে আবার বাচ্চাদেরকে পালার জন্য সেন্টার আছে, ইডি সেন্টার বলে তাকে। সে 7 তারিখ দিকে আমি অ্যাপ্লাই করছি যে এখানে আমাকে ছেলে হোক একটা মেয়ে হোক আমাকে একটা বাচ্চা দিবেন। তখন আমাকে জয়েন, আমি ওখানে রিলিজ নাম লেখাইতে হয়, ওখানে টাইম বহুত করে টাইম আসে আর কি। তখন আমাকে বললো কি ওই আমার ড্রাইভারটা, ম্যাম আমার একটা বাচ্চা আছে, ওর মা মারা গেছে, তুমি ছেলেটা পালবেন, কিভাবে মারা গেছে তো ডিটেল বললো আর কি। বলে কিন্তু ওর ওয়াইফ কিন্তু মারা যায় নাই, এটা মিথ্যা আর কি বলছে, ওর ওয়াইফ অন্য একটা ছেলের সাথে চলে গেছে। তাই আমি বলতেছি ঠিক আছে আমাকে দিয়ে দিবেন, আমি পালবো, কিন্তু আমাকে লিখে দিবেন। বলতেছে ঠিক আছে লিখে দিব। তারপরে ছেলেটা নিয়ে আসলো, ভাই 6 মাসের ছেলেটা, ওকে আমি নাকি পালতে আসছি। পালার পরে আমার মামারা বললো কি যে কিরণ তুমি এভাবে কতকাল আর থাকবা, তুমি এর সাথে বিয়ে করে নাও। ओके, মানে ड्राइवर আপনাদের বাড়ির ড্রাইভার? जी, ये तुम्हें एक लड़का भी दिया हुआ है, देखो तो तुम इसके साथ शादी करो। तो मैंने कहा मामा मैंने इसके साथ कभी शादी नहीं करूंगी, मुझे शादी नहीं करनी है, कि शादी में जो जिंदगी में जो कुछ हुआ है वो तो मैंने देखा ही है, और मुझे कुछ नहीं करना है। तो जो कुछ हुआ वो उसने मुझे बोला है ये शादी तुम कर लो। तो मामा बाबा सब लोग मुझे इसने शादी दिया है। 5 साल गुजर। আপনার পায়ে সমস্যা হচ্ছে, রাইট? বসে থাকতে। প্রিয় শ্রোতা, এখানে একটু আপনাদেরকে নোট করছি, একটু আগে যে বিভীষিকার বর্ণনাও দিয়েছে, ওকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে যে মাঠটা দেওয়া হয়েছিল, উনি কিন্তু এখন পর্যন্ত সুস্থ না, উনি পাটা ধরে রাখতে মানে অনেকক্ষণ বসে থাকতে সমস্যা। আপনি কি একটু হাঁটাচলা করবেন? আপনার কোন পা ভাঙা? ডান পাটা না? হ্যাঁ, পায়ের নখগুলো আমরা আলাদা কিছু ছবি চাইলে দিয়ে দিতে পারি। আপনার যে নখগুলো ডান দিকে বাঁকা, এগুলো কি ভেঙে যায়? একটু আপনি মাইক্রোফোনটা সামনে নিয়ে বলবেন প্লিজ। আমার নামগুলো এরকম হয়েছিল, আমাকে প্লাস দিয়ে আমার নামগুলো সব তুলে ফেলেছিল একবার। এই প্লাস দিয়ে তুলে ফেলেছিল? হ্যাঁ। ওকে। আমার হাত এগুলো সব ভাঙা। প্রিয় শ্রোতা, আমরা এই হাত এবং এই পায়ের কিছু কোলাস, কিছু ছবি আমরা ফেসবুকে এখন দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের দেখার জন্য, যে একটা মানুষ কতটা নির্মম, কতটা পাশবিক, কতটা বর্বর হতে পারে। ফেসবুকে আসলেই দেখতে পাবেন। আমাদের ফেসবুকের ঠিকানা facebook.com/hello8920। আবারও বলছি facebook.com/HELLO8920। ওখানে গিয়ে লাইক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আপনি hello 8920 মেম্বার হয়ে যাবেন, এবং পেজটি আছে কিন্তু RJ Kibria নামে। ओके, তারপর আপনি বিয়েটা কোথায় করলেন, राइट? जी, उनकी बात सुन के मैंने शादी भैया किया। शादी के ये 2010 है। तो उसके बाद जो है ये मुझे कह रहा था देखो, मैंने उसको, वो मेरी पूरी कहानी जानता है, तो मैंने उसको बोला देखो मुझे बांग्लादेश में जो है वहाँ पर मुझे जाना है, तुम्हारा तो घर वहाँ पर ही है, उसके भी घर यहाँ पर ही है। ओके। तो मेरे को उसने बोला मैं छोटा में आया हूँ, मेरा घर मेरा माँ बाप सभी। কোথায় ওনার বাড়ি বাংলাদেশে? मादारीपुर इडिरपुर। अच्छा, मादारीपुर इडिरपुल। ओके। तो मैंने कहा मेरे को बांग्लादेश ऐसा लेके घुमाने के लिए लेके चलो। मेरी वीजा 11 महीना की थी, तो वहाँ पर मैं जाके मेरा माँ बाबा वहाँ पर मैं अखबार में उसमें मैं सब न्यूज में दूंगा वहाँ पर। ओके। उसमें दूंगी तो जो मेरा पेरेंट्स है वो मुझे कोई भी तो यानी कि जो मेरा अपना होगा अगर है तो सब सामने आएगा, तो मुझे वहाँ पर लेके चलो। इस तरह मैंने उसको बोला। हाँ, मैंने एफएम वहाँ पर भी सुनता था। सुनते ना अपनी? हाँ, वहाँ पर मुझे आपकी डायरेक्ट नहीं होता था, वो मुझे मीटिंग में मुझे सुनाते थे। इमरान भाई मुझे बोलते थे तुम जब भी बांग्लादेश में जाओगे ना तो यहाँ पर तुम जाना जरूर, तुम्हारे हेल्प हो जाएगा। মানে এই অনুষ্ঠানের কথা বলেছে? হ্যাঁ। ওকে। যাতে কি वहाँ पर লাখো লাখো লোক শুনতে হয়। ওখানে এই hello 8920 কিভাবে শুনে, মানে এই অনুষ্ঠানটা কিভাবে শুনেন আপনারা? ওটাকে টিলকাস বলে, এখানে বাংলাতে কি বলে বলতে পারেন, কিন্তু ডাইরেক্ট শোনা যায় ওটাকে আমি শুনি, আমাকে রেকর্ড করে দিচ্ছে, আমি ওইগুলা শুনছি। ওকে, তার মানে হয়তো ডাউনলোড করে বা কোনো ভাবে ডাউনলোড করে এর ভাবে।
तो ये बात जब उसको मैंने बोला, मैंने वो बात उसको मैंने बोला, मैंने कहा देखो मुझे लेके चलो। फिर मैंने वहाँ पर, उसने क्या किया, ये बात सुन के वो बहुत खुश हुआ, जो खुद से जाना चाह रहा है बांग्लादेश में। ओके। तो मैंने उसको बोला बांग्लादेश में जो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं तो कभी जो है तो चैनल है जो मैं देखता हूँ वहाँ पर जो लड़की से खाना पकाना, ये करना वो करना, बारिश होती है बारिश होती है, तो ये चीजें तो मुझे नहीं होगा। तो मेरी घर जो है इस तरह बनना है, वहाँ पे बांग्लादेश बोलती है, जो इस तरह बनाना है। तो उसने मुझे बोला इसमें बनाने के लिए तुम्हें 1.5 करोड़ चाहिए। মানে আপনার বাড়ি ছিল বাংলো বাড়ি, তো ওই রকম একটা বাড়ি বাংলাদেশে বানানো দরকার, এবং সেজন্য আপনার হাজবেন্ড বললো যে এরকম একটা বাড়ি বাংলাদেশে বানাতে চাইলে 1.5 কোটি টাকা দরকার। ওকে। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, আপনি দিয়ে দেবেন 1.5 कोटी। मैंने इसलिए बोला भाई आज यहाँ पर अगर मेरा घर हो, एक दिन लग जाएगा, नहीं भी हो तो मेरी मौत तो बांग्लादेश में होगी, इसलिए फिर मैंने उसको बोला 1.5 करोड़ रुपया मैं दे दूंगी तुम्हें। और उसने मेरे साथ कभी बदतमीजी नहीं किया वहाँ पे, क्योंकि उसका जो बेटा था भाई बहुत खूबसूरत थे बेटा, वो बेटा मेरा, और वो बेटा मेरी बगैर कुछ भी नहीं मानता था। मैंने कहा एक काम करना, तुम जो है 1 साल पहले चले जाओ, ये जो है जाके तैयार करोगे, और यहाँ से फ्रिज जो भी जितना भी चीज है यहाँ से मैं लेके जाऊंगा, यानी कि वॉशिंग मशीन तक मैंने लेके आया हूँ वहाँ से। एयरपोर्ट मेरी चार्ज भी है, एयरपोर्ट में भी पता है, पता कर सकते हो। इसी तरह डिजाइन के वहाँ से मैंने गेट लग दे दिया जिस तरह बनाना। उसने भैया 1 साल पहले आया, आके मैंने उसको पैसा दिया, और 22 तोला मैंने जेवर लेके आया था। 22 तोला यानी कि जेवर, यानी कि हाँ मेरी चूड़ी वगैरह ये चीजें थी। ओके। हाँ ये मैंने लेके आया। तो मैंने कहा यहाँ पर, और मैं 11 महीने की वीजा लेके आया, अगर मुझे पसंद होगा यहाँ पर तो फिर मैं रहूंगी, अगर नहीं पसंद हुआ तो फिर मैं चली जाऊंगी। ओके। ये बात थी। तो फिर यहाँ से उसको मैंने भेजा, भेजने के बाद जो है उसने भैया पैसा को क्या किया मुझे नहीं मालूम, उसकी माँ जो है वो हंस करके आया। फिर उसके जो एक भाई सऊदीया में है, जिसने मुझे खास तौर पर भेजा है, आप उसके नंबर लेके बात कर सकते हो, सब ने मेरे को बोला है भाभी सब चीजें रेडी है, आप अभी आ जाओ। ये तैयार करने में 1 साल लगा, और वो जो है पासपोर्ट में नहीं आया, एक तरफ की जो टिकट होता है उसमें, और मैं जो अप डाउन में टिकट में आया हूँ। तो मैंने आया, जब भैया मेरे को एयरपोर्ट में लेके गया, आप यकीन करेंगे एयरपोर्ट में भी आप चार्ज वहाँ पर होता है, वहाँ पर वो मेरा तो जिक्र भी लगा हुआ है। तो उसने मैंने इतना सामान लेके आया, आप यकीन करो मुझे यहाँ पे मेरे 12 बजे की फ्लाइट में पहुंचा था, मैं दूसरा दिन 12 बजे मेरे को छोड़ा था उन्होंने। ओके। और यहाँ से सारे सामान लेके गया, जाके भैया जब उसकी घर देखा ना, जाके देखा है उसके घर में जो है वॉशरूम भी नहीं है। जब मैंने वो चीज देखा है तो मेरा तो पैर के नीचे से मिट्टी चला गया। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा मेरा जो सामान था तुम्हारे साथ, जो मैंने सामान 100 केजी सामान उसके पास भी भेजा था, तो मैंने कहा जो सामान भेजा था वो कहाँ पर है? तो बोला तो सब है, यहाँ पर तो चोरी डाकाती हो जाता है, वो मेरा फूफू के घर है। अच्छा, उसने मुझे जो गेटलर भेजा था वो उसके फूफू की था। ओके। उनके 2 बेटा जो है वो इटाली में है, मैंने उनसे भी बात किया था। अच्छा, ये भी सामान जो है सब उनके घर पे लेके गया। तो उन लोग को बोला, उस टाइम पर मुझे तो बंगाली एक भी नहीं आती थी, थोड़ा बहुत मैं समझती थी लेकिन बोल नहीं पाती थी बांग्ला है बांग्ला। ओके। ताई उसने मेरे को बोला बस सब जो है ना कह रहा, मैंने समझ कह रहा ये घर बन रहा है। उस टाइम पे घर बन गया, थोड़ा कलर मलर ये थोड़ा सा रह गया। ओके। कह रहा था ये घर मेरा है। तो उनका जो फूफी वगैरह है वो भी बोल रहे हैं इन्हीं का है। तो आस्ते आस्ते जब मैंने सामान सेट कर रहा हूँ, अब बोलता है ये घर तो इनका है, ये जिस घर में बाथरूम वगैरह वॉशरूम वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर ये भी घर बनाना है। तो मैंने कहा ये घर मुझे अभी नहीं बनाना है, अगर ये तुम लोग को बनाना है तो बाद में बनाना, जो मैंने पैसा लेके आया हूँ इस अमाउंट से पूरा नहीं होगा। ओके। और मेरे को अमाउंट चाहिए, क्योंकि मैं नुआखाली जाऊंगी, मैं एक एक जगह पे जाऊंगी, फिर मैं एड दूंगी। नुआखाली मैंने अपने आगे हस्बैंड बाड़ी। या ओके। तो मैं उनको ढूंढने के लिए मुझे पैसा की तो जरूरत पड़ेगा। ये मियाँ मुझे उठ के बोला कि तू वो ढूंढने के लिए आया है, उसने एक खराब गाली दिया है। तो मैंने कहा इसने मुझे कभी भी इसने मेरे को मैम के अलावा बात नहीं किया, जो उसकी बात थी। तो ये मुझे ये बात गाली और ये बात क्यों दिया है, जिसने तेरे को ये कुछ किया हुआ है, वो बच्चा तू ढूंढने जाएगा? मैंने कहा हाँ, मैं वो लड़का के लिए तो मैं आया हूँ, वो लड़का मैं ढूंढूंगा, वो तो मेरी जिंदगी है, मैं उसे देखूंगा। तो ये बात से उसे 1 बात से 2 बात से मेरी लड़ाई लगाए। अब वो कह रहा तेरा वो जो बेटा है, अगर तू वहाँ पर जाना है तो तू मेरा घर नहीं आना। मैंने कहा ये मामला क्या है, समझ में नहीं आ रहा, जो उनके घर जाना है उनके घर नहीं जाना है, तो मामला क्या है? अच्छा, वहाँ पे 2-3 औरतें और बांग्ला में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था क्या बोलते थे, और उनकी खाना भाई वो समझ में नहीं आती थी मुझे, वहाँ पे मैं खाना ही नहीं खा सक रही हूँ। अच्छा, वहाँ पर 2 पाकिस्तानी थी जो मेरी बात को समझ में आता था। तो वो मुझे बोलता था
जी ये तुम्हारे साथ ना चीटिंग कर रहा है, ये घर उनका नहीं है, ये जो जमीन जो बनाने के लिए तुम्हें बोल रहा है ये तुम्हारा सास का है। तो मैंने कहा है ऐसा ही कुछ है। तो ये बोलने के बाद उसने मेरे से क्या किया, मेरा जो जेवर वगैरह कह रहा है यहाँ पे जो है चोरी बहुत होता है, ये बात है भैया वहाँ पे चोरी बहुत होता है, कह रहा है यहाँ पे डाका वगैरह आता है, ये सब चीजें दो मैं रख के। तो मैंने कहा मेरा जो सास है मुझे बहुत प्यार कर रहा था उस टाइम पे। तो मैंने कहा वो हज भी करके आया और उसका भी उम्र जो है 80 के बराबर है। तो मैंने कहा सारे जेवर मेरे सास के हाथ में दिए, कह रहा कुछ भी नहीं रखो, कान खींच के ले जाता है, हाथ खींच के ले जाता है यहाँ पे, और उनका ये चीजें है, और वहाँ पर डाका भी पड़ रहा था। तो मैंने कहा चले ठीक है, ये मैंने उनको दे दिया। जो बेटा है मेरा वो मुझे कह रहा है अम्मी यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे वापस जाना है, उसको जगह पसंद नहीं आ रही है क्योंकि उसने देखा नहीं है कभी ऐसा है। तो ये चीज होने के बाद जो उनके साथ लगा मेरे पासपोर्ट वगैरह उसने सब ले लिया, लेकिन मैं ऐसा हुआ था जो मेरा पासपोर्ट उसने ले लिया, मेरे पास कॉफी था, कभी तो कह रहा था तू वो जा नहीं सकेगा। तो मैंने कहा तुम मुझे रखोगे कैसा है, तो मुझे गवर्नमेंट भी भेज देगा। तो ऐसा करके उनकी जो अम्मी है, उनके जो रिश्तेदार उनको वो समझाया होगा जिसके पास जो पैसा में से सब रख के फिर उसके बाद इसको कुछ करना। কত টাকা দিয়েছিলেন আপনি আপনার এই হাজবেন্ডকে ওই সময় সবকিছু মিলিয়ে? প্রথম मैंने जो है वो 1,30,00,000 টাকা দিয়েছি। 1,30,00,000 টাকা? হ্যাঁ। এটা সব আপনার বাবার কাছ থেকে পাওয়া এই সম্পত্তি? হ্যাঁ আমার বাবার কাছ থেকে পাওয়া। ওকে, তারপর? পরেও আমি 52 লাখ টাকা তো আমি নিজেই নিয়ে আসছি। বাংলাদেশ আসার সময় আপনি 52 লাখ টাকা নিয়ে এসেছেন আপনার গোল্ড গুলো বাদ দিয়ে? হ্যাঁ, তারপর ওই যে বলছে যে বাকি যে আমার কিছু লাগবে তারপর আমি সে যাবো, एक एक जगह जाबो, আমাকে লাগবে না, আর আমি गाड़ी से तो चलते पारबो ना। ओके। ऐसा करने के बाद उसके भाई लड़ाई झगड़ा हो गया, इसने मुझे कह रहा है, मैंने कहा चलो ठीक है जो भी है आस्ता आस्ता हो जाएगी। इसने कह रहा कि मेरे को कह रहा चलो घूमने के लिए चलो, तुम तो बांग्लादेश देखा नहीं है, चलो घुमाने के लिए ले जाऊं। तो मैंने कहा चलो लेके जाते हैं। इसने क्या किया, मुझे लेके गया चट्टग्राम, वहाँ पे पहाड़ भी है, चाकमा लोग भी है वहाँ पे। लेके जाके मैंने कहा कौन सी जगह पर लेके आया हो, कह रहा है ये यहाँ पर मेरा चाचा का घर है, यहाँ पर मैंने गाड़ी लेने के लिए आया हूँ, ऐसा कुछ है। तो मैंने कहा अच्छा। वहाँ पर भी भैया मेरी नसीब ऐसा खराब है, जो पीछे से होके आया है वही चीजें हुआ। उसने मुझे को पानी दिया, मैंने पानी पियाऊं, फिर मुझे शरबत दिया, मैंने शरबत पियाऊं, लेकिन किसके अंदर जो उसने मुझे निशा की चीजें मिला के दिया ये मैंने मेंटेन नहीं कर पाया, मेंटेन नहीं कर पाया। जगह नहीं पहचानती हूँ, बंगला नहीं जानती हूँ, वहाँ पर उसने मुझे छोड़ के आ गया। চিটাগং? हाँ, ওখানে আপনাকে ফেলে দিয়ে চলে আসলো? है। वहाँ पर जब मैंने आँख खुली हूँ तब मैंने देखा मेरे पास कोई भी नहीं है, ये कौन सी जगह है, क्या हुआ, कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ में जो जेवर वगैरह थे वो भी कुछ भी नहीं है भाई। मेरे को 10 रुपया नहीं है, सिर्फ मेरे को पहनने में एक जींस की पैंट था और एक शर्ट था। वहाँ पे रॉनी करके एक लड़का है जिसके हाथ में हैंड होल्डर करके आया उसने, तो उस लड़के के नंबर है मेरे पास, वो स्मगलिंग करता है, वो बहुत सारा खराब जितने भी खराबी चीजें वो करता है वहाँ पर। প্রিয় শ্রোতা, আপনাদেরকে একটু নোট করতে চাই, এখানে যে রেফারেন্স নাম্বারগুলোর কথা এসছে মাদারীপুর থেকে শুরু করে নোয়াখালী থেকে শুরু করে এবং যে ছেলেটার কথা একটু আগে আসলো, সবাইকে নিয়ে আমরা একটি প্যাকেজ করছি, সবার সঙ্গে আমরা কথা বলবো এবং এই কথা বলার পার্টি ডিল করছে শাকিল, এবং কি কথা বলছে সেটা আমরা একেবারে গল্পের শেষের দিকে এসে আপনাদেরকে শোনাবো। হ্যাঁ বলুন। তারপর भैया जो रॉनी भैया वहाँ पे मेरे को मिला है, मिलने के बाद जो है रॉनी मेरे पास आया, आने के बाद बोला है वो बंगाली शुरू किया। मैंने कहा भाई मुझे बांग्ला नहीं आती है, मुझे ये बताओ मेरे हस्बैंड कहाँ है। तो बोलते तुम्हारे हस्बैंड, व्हाट हस्बैंड, कोता हस्बैंड, मैंने जिसके साथ आया हूँ वो कहाँ है। वो तो चला गया। वो चला गया क्यों, कहती है तो मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने कहा मेरे को तुम्हारे पास रख के गया, तो कह रहा हाँ मैं तुम्हारे को मेरे पास रखे और अब तुम मेरे अंडर में काम करोगे। तो भैया ये बात जब उसने बोला, मेरी जिंदगी में मैंने पीछे की तरफ देखा, आगे की तरफ देखा, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, किसी तरफ भी नहीं जा सकता हूँ। उसने मुझे बोला था, मैंने बहुत रोया था। उसने मुझे कहा अभी तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा, जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने उसको बोला भैया मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं पाकिस्तानी लड़की हूँ, मैंने बांग्लादेश में आया था, मेरे माँ बाप को मेरे को नहीं मिले, कुछ चाहिए मुझे भेज दो पाकिस्तान। मुझे, मैं पाकिस्तान की लड़की, मुझे बांग्लादेश में नहीं रहना, मुझे माँ बाप कुछ भी नहीं चाहिए। ये मेरे साथ क्यों हुआ, अब है मुझे जवाब नहीं मिलती है, अपने आप से भी नहीं मिलती है। मैं जिधर देखती हूँ सिर्फ अंदर के सिवा कुछ रोशनी नहीं मिलती है। मेरे नाम की मायना भी रोशनी है, लेकिन भैया मैं किसी भी रोशनी नहीं दे सका। कुछ इंसाफ मुझे नहीं मिली, ना पाकिस्तान ना बांग्लादेश। इसमें मेरी कसूर क्या थी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता भैया, लेकिन जो बात मैंने कहा है एक भी बात भैया झूठ नहीं है। उसने मुझे एक रूम के अंदर लेके गए, वहां पर उसने मुझे बोला है
खराब बातें बोला है उसने मुझे कहा तुम कपड़े उतारो। আপনি আপনি একটু নিজেকে একটু সামলে নিন, নাহলে भैया मेरे कसूर क्या था? मैंने क्या कसूर किया दुनिया पे आके? চিটাগং থেকে আপনি কিভাবে ঢাকার দিকে আসলেন? ओके ना भैया, उसने मुझे लेके जब उसको मैंने बहुत हाथ पे पकड़े, फिर जब उसने मेरे को उसको मैंने पूरा डिटेल बताया। मैंने कहा देखो मैं बंगाली नहीं बोल सकती, इस तरह बात हुआ, तुम्हें पैसा चाहिए, मेरे पास पैसा है, मैं तुम भी जाके तुम मुझे ढाका में पहुंचा दो। तो उसने मुझे बोला है तुम ढाका में जाओगे? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा देखो तुम्हारी माँ बहन है, तुम मुझे सिर्फ पूछो तुम्हें पैसा चाहिए ना भैया मैं दे दूंगी, किंतु मेरी इज्जत के ऊपर हाथ मत डालना, मुझे मार दो तुम, नहीं मार सकते हो, मेरे पास कुछ दो मैं मर जाऊं। तो उसने मुझे कहा कि लड़की देखा है, ऐसा नहीं लड़की देखा है। तो उसने मुझे कहा देखो इस जगह किसी को नहीं देखा होगे। मैंने कहा भाई मैं पहचानती नहीं हूँ, मैं कहाँ से क्या करूंगी? तुम्हारे मियाँ ने बोला तुम्हारे मियाँ को भी तुमने खुद मारा है, तो तुम मुझे कहाँ से छोड़ोगे? तो मैंने उसको बोला भाई मैं आपसे वादा करती हूँ आपका नाम जब तक नहीं बोलोगे मैं नहीं बोलूंगी। तो उसने मेरे को भाई गाड़ी में उसने मेरे को पैसा दिया और मुझे गाड़ी में बैठाया, बोला तुम जा सकोगे आगे। जाके एक घंटा के बाद उसने मुझे फोन किया। मैंने सीधा जो है वहां पर गया मेरे ससुराल में, जाके मेरी सास जो है वो घर पर नहीं थी। फिर मैंने गया वहां पर थाना है आपकी, वो थाना वाला भाई मेरी केयर नहीं की, ये थाना वाला पूरा उसकी सब उनके जानने वाला है, दर्जीबाड़ी की लड़का है। तो वहां पर जब मैंने गया इसको मुझे नहीं मिला, उनके घर पे जितना भी लोग थे वहां पे उनकी बहन वगैरह कि वो मुझे नहीं मिली। जब मुझे नहीं मिली उनकी फूफी वगैरह मुझे मिली। तो मैंने कहा फूफी वगैरह, वो मेरी बात नहीं समझ में आ रही थी। तो मैंने कहा मैंने ऐसा किया है, उन लोग ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो उन लोग ने केयर नहीं किया। मैंने कहा अब मैं कहाँ जाऊँ? मैंने कहा जाने की तो कोई रास्ता नहीं है, मुझे 2 दिन की जो है आप यहाँ पर रहने के लिए दो और आप खलील को जो है फोन करो। तो उसने भैया मुझे फोन बंद, नंबर उसने बंद करके रखा है। और यहाँ से मैंने रनी को बोला रनी भैया मैं आ गया, यहाँ तक है आपके साथ मेरी जो भी है यहाँ तक है। तो फिर उसने फोन करने के बाद जब कुछ भी नहीं मिला, अब मैं क्या करूँ? अब मेरे पास तो पैसा भी नहीं है। मैंने फिर एक नंद की घर है, मैंने उसके पास गया, जाके देखा है मेरी सास को मैं वहाँ पर 2 दिन के बाद। जब मेरी सास को मैंने वहाँ पर देखा हूँ, मैंने कहा एक काम करे आप मेरा जेवर दे दीजिएगा, नहीं तो मैंने सबके नाम पर केस करूंगी। तो उनके पास जेल नहीं थी, उनकी गला पे मेरा एक चेन था, उनको वहाँ से लड़ाई करके मैंने वो चेन लिया और मैंने आ गया हूँ। मैंने अब जो कहाँ जाऊंगा मैं वो भी नहीं बता सकती भैया, क्योंकि वहाँ तो मुझे रखना नहीं, खलील वहाँ पर नहीं है। वो कह रहा है तुम्हारे मियाँ कहाँ गया मुझे नहीं पता। अब मैं जो वहाँ पे उन पर केस करूंगी, मेरे पास ऐसा कोई लोग नहीं थी जो मेरे साथ देता था, क्योंकि बंगाली मुझे बिल्कुल भी इस टाइम पे नहीं आ रही थी। আপনি যাত্রাবাড়িতে কিভাবে আসলেন? ঢাকার যাত্রাবাড়িতে কি আপনাকে সন্ধান দিল? আমার চেনটা নিয়ে আমার শাশুড়ির কাছ থেকে ওখান থেকে আমি আসি मावाघाट वहाँ पे मैं आता हूँ। वहाँ पर आने से मेरे को ये लड़की जो जिसके पास मैं अभी रह रही हूँ, ये लड़की मुझे मिलती है। तो लंच आती है तो मैं रोती हूँ, मेरे आंसू गिर, मैं खुद नहीं रोती, मेरे आंसू गिर रही है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो पैसा भी नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे ये ख्याल है जो ये जेवर में बेचूंगा, बेचने के बाद जो है फिर मैं कुछ करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसा नहीं है। रोनी ने मुझे जो पैसा दिया उसने मुझे 5,000 रूपये भी दिया, सॉरी भैया। तो 5,000 रूपये से मैं कितना दिन चलूंगा? तो ये करने से वो जो है ना मुझे पूछ रही है तुम क्यों रो रही हो? भाई नहीं सुनो मेरी कहानी, सुनना नहीं, अब मैं जाऊँ कहाँ मुझे नहीं मालूम। ये करके रोने से मुझे बहुत तसल्ली दिया है। वहाँ पे देने के बाद जो है फिर ढाका में आया हूँ उसके साथ। आने के बाद तो मुझे कह रहा है कि तुम मेरे घर चलो। मैंने कहा मुझे किसी के घर नहीं जाना, जो भी जाती हूँ वहाँ पर धोखा खाती हूँ, मुझे नहीं जाना। तो मुझे कह रहा नहीं धोखा नहीं खाओगे, तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा मुझे सिर्फ 2 दिन के लिए तुम जगह दोगे, 2 दिन में तुम मुझे जगह दोगे, मैं तुम्हें 2,000 रुपया दूंगा। तो कह रहा था अच्छा ठीक है तुम चलो। वो मुझे भैया लेके आती है। जब उसके घर पे आती हूँ, आगे देखती हूँ उसके घर में कुछ भी नहीं होता।
तो जैसा भी है, मैं 2 दिन वहाँ पर राहत देने के बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा यहाँ पर मुझे रूम मेरे को किसी के साथ मुझे रख दो, तुम्हारे ऐसा जाना तो क्या था, तुम मेरे साथ ही रह जाओ। मैंने कहा फिर एक रूम में तुम्हारी हस्बैंड है यहाँ पर, तो उसका एक प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम की वजह से केस में खा के वो ऐसा बैठा हुआ, उसने मुझे जगह दिया। उसके साथ जो है ना, मैंने जाके मेरा वो चैन को जो है 1 लाख रुपया मैंने बेच के आया हूँ मार्केट में जाके। अब वो मुझे कह रहा है कि तुम मुझे ना ये पैसा दे दो, मैं तुम्हें जो है वो किस्ती क्या बोलता है, वो किस्ती करके मैं तुम्हें दे दूँ, तुम खाना पीना मेरे पास से खाओ, और जब उसने मेरी पूरा कहानी सुनाई, जब तुम्हें ऐसा कुछ होगा या तुम्हें यहाँ पर कोई जॉब मिलेगा, कोई काम मिलेगा यहाँ पर गारमेंट से, तुम काम करना, तुम मेरे पास से रहना। तो मैंने उसको बोला मैं गारमेंट से काम नहीं कर सकती, मेरे पाँव में प्रॉब्लम है, अगर नीचे ऑब्स्टेट हो तो मैं कर सकती हूँ। तो भैया वहाँ पर मुझे उसने वो 1 लाख रुपया उसने मेरे से ले लिया। लेने के बाद वहाँ पर मुझे जगह दिया, उसने उसके पास रह रही हूँ। रहने के बाद जो है आप देख रहा हूँ रेगुलर कंटिन्यू जो है उसके पास लोग आता है। अब मैंने कहा ये क्या है, तुम लोग ये क्या करते हो? तो वो कह रहे देखो तुम्हें जो है ना रहना है रहो, नहीं रहना है तो जाओ। अब मैं फंस गई हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, वो पैसा जो था वो मैंने उसको दे दिया, अब मैं क्या करूंगा? तो अब मुझे वहाँ पर रहना, तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा देखो तुम लोग जो काम करते हो उसमें सब मुझे शामिल नहीं करना, ठीक है? और जैसा मैं काम मिलते हैं ऐसा मैं चला जाऊंगा। এই হচ্ছে আপনার বর্তমান অবস্থা। জি, আপনি পাকিস্তান এম্বাসিতে যোগাযোগ করেছিলেন? ভাই পাকিস্তাन एम्बासीতে একবার আমাকে নিয়ে গেছিল একটা ছেলে, তখন मेरी जो पासपोर्ट है उसका डेट ओवर है, तो उसमें पैसा बहुत मांगा है। लेकिन उसके बाद जो है ऑफिसर जो आपके यहाँ पर आया था, उसके बाद मैंने वो ऑफिसर से राब्ता किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने जात्राबाड़ी जो है वहाँ पर भी मैं पुलिस वाला के पास गया था, तो मेरे केस उन्होंने नहीं लिया, मैंने उसके खिलाफ केस करना है। সবকিছু মিলিয়ে আপনি 1 বছর যাবত এখন এই অবস্থায় বাংলাদেশে। হ্যাঁ। ওকে, প্রিয় শ্রোতা, আমরা গল্পের প্রাসঙ্গিকতায় এই মুহূর্তে সেই ভদ্র মহিলার সঙ্গে কথা বলতে চাই যিনি তাকে এরকম অবস্থা থেকে তুলে নিয়ে আসছিলেন, কোন একটি লঞ্চ ঘাট থেকে। উনি যেটা বলছিলেন, আমরা এই মুহূর্তে সেই ভদ্র মহিলার সঙ্গে কথা বলবো ফোনে, এবং সে কাজটি করছে শাকিল। শাকিল ভদ্র মহিলার সঙ্গে কথা বলে কি পেয়েছে চলুন আমরা একটু শুনি। আপনার নাম তো শিউলি? হ্যাঁ জি। আচ্ছা, আমার নাম হচ্ছে শাকিল, আমি এবিসি রেডিও থেকে বলছিলাম, হ্যালো 8920 অনুষ্ঠান থেকে। আপনি কিরণকে বোধহয় চেনেন, তো কিরণের কাছ থেকে আমরা কিরণের অনেক কিছুই শুনলাম, তো আমরা ভাবলাম যে আপনার সঙ্গে একটু কথা বলি, কিরণ সম্পর্কে যদি আমাদেরকে কিছু বলতেন। আচ্ছা ঠিক আছে। আমি ভাই একদিনকে দেখতেছিলাম, ওখান থেকে কি যে মাওয়া শ্রীনগর, ওখানে ওই আর কি কান্দাকাটা করতেছে, তখন আমি আর জিজ্ঞেস করছি যে আপা তোমার কি অবস্থা, কি আশার বিষয়ে। ওর বাংলাদেশের কথা একটু ওই কম আর কি বুঝতো, অনেক কাপড় ছিল, ওর কাছে আর কিছু ছিল না, তখন আমার লগে করে আমি নিয়ে আসছি। তখন আমি যে 3-4 মাস পর্যন্ত আমি খাওয়াইছি আর জিজ্ঞাসি, তারপরে এসে বলছে যে আমার তো কেউ নাই, আমি পাকিস্তান থাকি, 35 বছর আমি বিদেশে কামে আসছি পাকিস্তান। বলছি তোমার কোনো ছেলে সন্তান নাই? কইছে না আমার কেউ নাই, আমার একটা ছেলে আছে বাংলাদেশি, আমি এটা সুস্থে আমি দেশে আসছি। ওরা অনেক অসহায় ভাই, অনেক কান্নাকাটি করে, ওই দেশে যেতে চায়, আমার তার টাকা পয়সা নাই ভাইয়া, আমি কি ভাই ওকে আমি দিব, আমি অনেক কষ্ট করে খাই, আমি ম্যাচ খাওয়াই। আচ্ছা, ও বোধহয় আপনাদের সাথে মিশবার জন্য, কথা বলবার জন্য বাংলা ভাষাও শিখেছে, তাই না? বাংলায় কথা বলা। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাংলা কথা শিখেছি। এটা কি আপনারাই শিখিয়েছেন ওকে? হ্যাঁ আমরা শিখেছি। আচ্ছা, আমাকে আর একটা জিনিস বলেন যে কিরণের আচার আচরণ আসলে কেমন? কিরণ আচার আচরণ খুবই ভালো ভাইয়া, ওর কোনো চরিত্র খারাপ না, কোনো নোংরা ভাষা নাই, অনেক ভদ্র, অনেক ভালো মেয়ে একবারে। ও সত্যিকার অর্থেই হচ্ছে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কিনা কিংবা ও বিপদে পড়েছে কিনা এটা জানবার জন্যই আমরা আপনাকে ফোন করেছি। হ্যাঁ ভাইয়া, আজকে 2-3 দিন না খুবই কান্দাকাটা করতেছে, খাওয়া দাওয়া করে না ঠিক মতন। আর তো এই দেশে তো ওরা হাওয়া না সহ্য হয় না, আমার পায়ে ব্যথা, ও তো ওই জায়গায় থাকতে পারতেছে না, চলতে পারতেছে না, ওই জায়গায় গেলে ওই পাঁচ কি সবকিছু করতে। আপনারা কি কারোর সাথে কোনোভাবে যোগাযোগ করেছেন ওকে মানে পাকিস্তানে পৌঁছে দেবার জন্য? না না ভাই, আমি কখনো করিনি। আর ও বলছে রাতে শুধু এখানে কেউই নেই, তো আমি কার সাথে বলবো? জামাটা যদি খোঁজ দিতে পারতেন আপনারা, তারপর ওটা খোঁজ করে নিয়ে একটু দেখছেন আপনারা। ও তো একবার অসহায়, কোনো মাথা মাথা নাই, ঠিক আছে? জি, আপনার একটু সাহায্য করতে পারতেন তাহলে খুবই একটু উপকার হতো। এখন আসলে মানে কি করলে পারে ওর জন্য ভালো হয়, আপনারা কি মনে করেন? দেশে পুষে দেওয়াটাই ভালো মনে করি আমি আর কি। বাংলাদেশে ও থাকতে পারে না, বাংলাদেশের খাইতে পারে না, খাইতে পারে না, বাংলাদেশের ভাষাও বুঝে না, কারোর সাথে আমরা চলতে পারে না, তো দেশে যাওয়াটাই আমি ভালো মনে করি। জি ঠিক আছে, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, আপনি ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ শাকিল। আমরা আবারও ফিরে যাচ্ছি আপনার গল্পে, আপনার জীবনের গল্পে। আপনি এখন কি চান? এটাই আমি চাই
যে আমি ওকে আগে বিচার করব, যে আমি এখানে যেন বিচার পাবো, আমার কেসটা যেন কেউ লড়ে, কেন আমার মরার ভয় নেই ভাইয়া। আপনার বাবা মাকে দেখতে এসেছিলেন, আপনার নিজের সন্তান, দুটো সন্তান, এক সন্তান তো থেকে গেল পাকিস্তানে, বাংলাদেশে এসে তাদের খোঁজ করেছিলেন, আর তাদেরকে দেখতে ইচ্ছে করে এই অবস্থা? হ্যাঁ ভাইয়া, আমার মনে হয় আমি এখনো যদি তাকে দেখে মনে যেতাম, সেটা আমার শান্তি ছিল, আমি সাকসেস হইতাম। কেউ যদি ভাইয়া কাউকে আদর করে না, তো আমার রিস হয়, আমার কেউ থাকলে ভাবে আমাকে আদর করতো। কিন্তু মেয়ের লোকটা আমাকে বলে, অনেকে আমাকে ভাইয়া বিয়ের জন্য অফার দিচ্ছে এই অবস্থায়, কিন্তু তারা সব খারাপ কাজ করে, কেউ ভালো কাজ করে না। বাংলাদেশের মেয়ে, একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, সে পরিস্থিতির শিকার হয়ে, ভাগ্যের শিকার হয়ে পাকিস্তানে 40টা বছর কাটিয়ে দিল। তারপরও রক্তের টানে নিজের বাবা মাকে দেখার জন্য নিজের সন্তানের খোঁজে বাংলাদেশে আসলো। সবকিছু ছিল, অর্থ ছিল, সবকিছু ছিল। তারপরে বাংলাদেশে যেসব মানুষদের সাথে মিশেছে, বাংলাদেশের যেসব মানুষের কাছে সে গিয়েছে, তাতে বাংলাদেশের মানুষজন সম্পর্কে তার যে ধারণা, এবং বর্তমান সময়ে সে যে ভাবে বেঁচে আছে, 1 লাখ টাকার বন্ধকের কাছে নিজের জীবন। এবং আমি ঠিক জানি না হ্যালো 8920-তে তার আসার ইচ্ছা ছিল, কে বা তাকে ইন্সপায়ার করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে হ্যালো 8920-তে এসছে। 26শে মার্চের রাত তো চলে গেল, এখন 27শে মার্চ পড়ে গেছে। আজকের এই রাতে আমরা যে জীবনের গল্প এখানে প্রচার করেছি, আমরা একটা জীবনকে স্বাধীন করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রচার করেছি। ও যেভাবে বাঁচতে চায়, ও কি সুন্দরভাবে বাঁচতে পারবে না? ও তো এই দেশেরই সন্তান। ওকে আমরা যে 43 বছর পরে যে স্বাধীনতাকে নিয়ে আমরা গর্ব করছি, সেই গর্বিত জাতি আমরা কি পারি না এই ভদ্র মহিলাকে একটা অন্তত জীবনের যে কটা দিন, 40টা বছর তো চলেই গেছে, সে তার বাবা মাকে খুঁজে পাবে কিনা নিশ্চিত নই, কারণ তার বাবা মা আদৌ বেঁচে আছে কিনা আমরা নিশ্চিত নই। সম্ভব নয় কথাটা বলছি এই কারণে যে এই যে কিরণ হাজরা, যার নামটা আদৌ কিরণ হাজরা ছিল কিনা ছোটবেলাতে সে জানে না, এবং তাকে 40 বছর আগের এই ছোট্ট বাচ্চাটি যে উঠতে গেলে পড়ে যায়, তাকে দেখে তার বাবা মা চিনতে পারবে যদি বেঁচে থাকে, সেটা নিতান্তই আশা করাটা খুবই দুষ্কর। এবং হয়তো ঘটনার প্রেক্ষাপটে হয়তো কেউ খোঁজ করলেও করতে পারেন আমাদের অফিসে এসে, হ্যালো 8920-তে এসে। কিন্তু বাংলাদেশে তো অসংখ্য বাবা মা আছেন, অসংখ্য বাবা মা আছে, এবং একই সাথে অসংখ্য সন্তানও আছে, তার যেমন সন্তান আছে। আমরা কি পারি না যে এই মানুষটাকে আর যে কটা দিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে, সে যদি বাংলাদেশেই থাকে, সেটা তো আমাদের জন্য অনেক সৌভাগ্যে। আমার কোনো আপত্তি নাই, শুধু বাংলাদেশের লোকের কাছে আমার একটা কথা, যদি কেউ পারেন কাউকে ভালো করেন, প্লিজ কাউকে খারাপ করবেন না, কেন আমার মতো যেন কিরণ কখনো জন্ম না নেয়, কোনো মা বাবার ঘরেই না, এভাবে যেন কোনো কিরণ সাজা না পায়। আর যদি কেউ পারেন আমার জন্য উপকার করতে, আমি টাকা পয়সা কিছু চাই না, আমি পাকিস্তান এখনো যেতে পারি, শুধু আমি এটা চাই যে আমাকে ইনসাফ, শুধু আমাকে ইনসাফ দেন, যদি পারেন আমার কেসটা লড়েন, কেন আমার কাছে টাকা নেই। প্রিয় শ্রোতা, এই হচ্ছে কিরণ হাজরার জীবনের গল্প।